باتیں کر لیتے ہیں۔ بشیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر، ویسے تو غالب بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں، مجھے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، پر ایک پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں گالی دینا منع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر نے گالیاں دی تھی غیر مسلموں کو، کہا تھا کہ تم جا کر کے لات اور عزا کی خانقاہوں کو چوسو؟ اس کے بعد ہمارے نبی نے ریئیکشن کیا تھا نا، کیا کیا تھا جناب؟ ان کو بولا تھا نا کہ تم گالیاں مت دو۔ ریفرنس دیجیے ذرا، کہاں بولا تھا؟ کون سی ارے حدیث؟ ابھی جب اتنی یہ رات میں سو رہا ہوں، ریفرنس نہیں دوں گا ابھی۔ کیونکہ نہیں ہے۔ آپ حدیث بتا دیجیے، میں نکال دیتا ہوں کہاں بولا نہیں تھا نہیں کہ ہم آپ مت دو۔ نہیں نہیں ہم قرآن کریم سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم بتاتے ہیں۔ اچھا اور ایک نہیں بات، جب اللہ، آپ لوگ نے سنیے مانی، اللہ تھوڑا نا زمین پہ آ کے گالیاں دے گا، میں اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں صحاباؤں کی، محمد صاحب کی۔ تو ابو بکر جو جلیل القدر صحابہ ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، ان کو انہوں نے کافروں کو، کفار مکہ کو یہ کہا کہ تم جا کر کے لات اور عزا کی شرمگاہوں کو چوسو۔ اور ہاں اب کہہ اس رہے پہ ہیں اسلام میں ریئیکشن ہے۔ گالی دینا ہے۔ تو پھر یا تو یہ کہیے کہ اسلام میں گالی دینا منع نہیں ہے، یا تو پھر نہیں لعنت نہیں، بھیجیے منع ابو بکر کے اوپر۔ منع کیا گیا ہے ان کو نا، میں بتاؤں گا آپ کو دوسرے اسٹریم میں، کبھی آتا ہوں تو میں لے کے آتا ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ لے آئیے گا، فی الحال آپ دو میں سے ایک کام کریے، یا تو آپ یہ کہیے کہ اسلام میں گالی دینا جائز ہے، یا آپ یہ کہیے آپ ابو بکر کے اوپر لعنت بھیجیے کہ اس نے اسلام کے خلاف کام کیا۔ اس میں لعنت بھیجنے کی بات ہی نہیں، ان کو منع کر دیا گیا، میں بول رہا ہوں نا۔ ارے تو یار یہ کیسا اسلام ہے؟ ذلیل القدر صحابہ ہیں، دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل رہی ہے، پہلے خلیفہ ہیں، اور ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ستاروں کے مانند ہے صحابہ، ان کی اتباع کرو۔ پھر تو اس بات کی بھی اتباع ہونی چاہیے، اس بات کو بھی مانا جانا چاہیے مومنوں دوارا کہ بھائی وہ گالی دیتے تو ہم بھی دیں۔ پھر آپ کیسے کہہ یہ سکتے ہو کون، اسلام میں گالی دینا کہاں منع ہے؟ اسلام بولتا ہے کہ انسان غلطی نہیں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے بالکل، لیکن پھر یہ کیوں کہتے ہو اسلام میں گالی دینا منع ہے؟ ان سے غلطی ہوئی، ان کو بتایا گیا نا۔ ایسا کرو آپ سورۃ انعام کے 108 نمبر آیت نکال دیجیے، سورۃ انعام 108۔ میں نہیں جا رہا جناب آیتوں پہ، آپ حدیث پہ آئیے، پہلے آیتوں پہ بعد میں جائیں گے۔ نہیں پہلے بھائی سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اللہ کہتا ہے۔ اللہ تو خود گالیاں دیتا ہے قرآن کے اندر، میرے بھائی تم کیا بات کر رہے ہو؟ بھائی کیا بات کر رہے ہو یار، آپ کو جب کچھ معلوم ہی نہیں ہے نہیں تو کیوں دیتا ایسی کیا؟ بات کرتے ہو؟ نہیں دیتا کیا؟ آپ قرآن منع کو کریں اپنے میں آیت مطلب پیش سے کرتا ہوں۔ سمجھیں گے تو وہی ہوگا، اپنا عقل تو لگائیں وہی گے تو ہوگا نا یہی بھائی۔ ہوتا ہے۔ بشیر بھائی اور وقاص بھائی، آپ دونوں حضرات مجھے یہ کہیں کہ نہیں اللہ قرآن میں گالی نہیں دیتا، اب میں آیت دکھاتا ہوں۔ اب بھائی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے قرآن کہے کریم تو میں، نہیں بھائی دیتے آپ کو عربی، آپ مکر کو کا معلوم ہی لفظ نہیں ہے، ہے قرآن گالی کریم۔ نہیں، مکر کو مکر گالی چھوڑیے، نہیں ہوتا ہے۔ سارے مشرکین نجس ہیں، برسٹ آف کریچر ہیں، وہ کتے ہیں، وہ خنزیر سے بھی برے ہیں۔ میں دکھاؤں نہیں ہے، گالیاں نہیں دیا؟ یہ اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ غلط لکھا ہے۔ اچھا تو اچھا یہ کہہ رہے قرآن میں نہیں وہ سر دکھا دے، سر اگر اب تو کسی دکھا نے دے، سر اب تفسیر، دکھا دے، کسی نے ایسا اب تفسیر اتر کیا پائے ہے تو گا، یہ غلط ہے کہ انسان اب اتر پائے گا گالی یہ، دے رہا ہے، اللہ گالی ہے، نہیں بول دیتا رہا ہے۔ ہے سر تر یار پائے گا، سر تر پائے گا۔ بشیر بھائی تم میرے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے بھائی ہو، پر مان جاؤ مومنین ایسے نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ وقاص بھائی سے کہلوا دو پھر مومنین یہ نہیں، ایک منٹ تم میری بات سنو نا، تفسیر میں نے نہیں بولا نا آپ ایسا غلطی کرو، ہو سکتی ہے، تفسیر میں غلط ہے، تفسیر میں بہت بشیر بھائی چیزیں ہیں جو آپ نے غلط ہیں۔ سنیے، آپ نے اپنا تفسیر پوائنٹ رکھ میں دیا، آپ نے کچھ غلط کہہ دیا، تفسیر آپ کے ساتھ بات ہی ختم ہوگی۔ بشیر صاحب آپ اپنا میوٹ لگا لیں، اب بات وقاص صاحب کے ساتھ ہوگی۔ جی ویسے وقاص صاحب اب آپ سمیر ایسا بھائی کریں۔ ہاں بندے کو کچھ پتہ نہ ہونا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی سب بھی نہیں اچھا کرتے، وقاص سب بھائی نہیں آپ ہے، کو کچھ میری نہیں آواز ہے۔ آ رہی ہے تو آپ مجھے اب جی ایک جی کام کیجئے، یا تو آپ یہ کہیے کہ نہیں ایکس مسلم سمیر صاحب آپ نے جو کہا ہے وہ جھوٹ ہے، ایسا قرآن میں کہیں نہیں لکھا، یا تو اب آپ یہ بتائیے، یہ کہیے کہ ہاں اللہ بھی گالی دیتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز پہ آئیے۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ ایسے فاحش باتوں کا بات کرتا ہی نہیں ہے، کہاں بات کرے تم؟ آپ کو عربی جب آتی ہوگی تب میں ماننا پڑوں گا آپ کو۔ رکے میں آپ کو آیت دکھانے لگا ہوں، رکے۔ تو وکاس پھر اس بھائی آیت میں میں آپ سے پوچھوں گا، میں گالی پوچھوں گا دینا بھائی۔ اور نہیں فحاش دیکھو باتیں دیکھو کرنے میں پھر اس میں فرق نا ہے۔ ایسا کرنا وقاص صاحب، اس میں نا پھر اپنی والی ٹرانسلیشن مت کرنا پلیز، جو اس میں لکھی ہوگی وہی پڑھوں گا میں، وہی ماننا پھر۔
ٹھیک ہے آپ نکال دیجیے. میں نکال رہا ہوں، تب تک غالب صاحب آپ بات کریں. وکاس بھائی اگر میں آپ کو بولوں جانوروں سے بدتر تو یہ آپ کی تعریف کر رہا ہوں یا آپ کو گالی دے رہا ہوں؟ بھائی یہ ان لوگ کے بارے میں بولا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتا ہے. جانور بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام نے کہا وہ میری جہاں نظر بولا میں ہے تو آپ کے پاس عقل ہی نہیں ہے عقل سے کام لینے کی. سنو نا صحیح جہاں سنو بولا ہے ادھر ریزن ہوگا نا. ارے سنو تو سر جی میں کیا بول رہا ہوں. میری نظر میں آپ پہ تو عقل ہی نہیں ہے، عقل سے کام لینے کی بات تو بہت دور ہے. تو اب میں آپ کو جانور سے بدتر بول سکتا ہوں؟ بھائی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ سوچتے کیوں نہیں ہو کہ مجھے اپنے رب نے کس کے لیے پیدا کیا؟ میں کیا بول بھائی رہا ادھر ہوں کہ بات دیکھو سوچنے کی ہے نا. سوچنے والی باتیں آپ لوگ مت کیا کرو یار. آپ لوگ صرف ایمان لا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرو، سوچنے والی باتیں مت کیا کرو. میں یہ بول بھائی رہا ہوں، ہاں میں یہ بول رہا ہوں بھائی کہ کیا بول رہا تھا میں؟ تم ہی بولو یا میں بھول گیا. ارے تم اچھا بھی وہی انسان ہو ارے یار. سر آپ بول رہے تھے کہ جانور کہنا یا پھر جانور سے بدتر کہنا گالی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی میری نزدیک آپ میری بات نہیں مان رہے ہو، نہیں سمجھ رہے ہو، تو اب میں آپ کو جانوروں سے بدتر بولوں تو کیا یہ درست رہے گا؟ یہ تو بھائی جانور بھی نہیں سوچتے ہیں. تو جو انسان نہیں سوچتا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی جانور ہے، اس سے بھی بدتر ہے. کیوں نہیں سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. وما خلقت یہ الجن دیکھو نا، والانس الا ليعبدون. ایک سر سیکنڈ. میرے غالب بھائی میں ان سے کیا وہ پوچھتا آپ ہوں. کا تعریف ہے یا وہ آپ کا گالی ہے؟ وکاس بھائی آپ تفصیل بتا رہے ہیں، آپ یہ بتائیں اس تفصیل میں گالی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں اس میں کہاں گالی ہے. اس نے تو ایک ریزن دیا بھائی کہ سوچو. سوچنے جیسے میں یہ حیوان نہیں بول رہا ہوں، سوچتا، یہ لوگ بھی اس طرح نہیں سوچتا ہے. سنو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو ایک بندے نے، ایک بابا صاحب نے ایک عربی خدا کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں مانتا ہوں کوئی کریٹر ہے، آپ اس کو چھوڑ کے اس عربی والے انسانی خدا کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کتنے بڑے بیوقوف ہیں. اب کیا آپ نے مجھے یہ جانور بتائیے سنو مجھے یہ بتائیے ایک بات. صبر کرو. مجھے یہ اگر آپ کسی کی میں تخلیق کرنے والے کو نہیں مان. میری بات پوری نہیں ہوئی. میں تو مانتا ہوں کوئی کریٹر، اس کو چھوڑ کے آپ لوگ ایک بابا جی کے خدا کے پیچھے لگے پڑے ہیں. تو کیا اب میں آپ کو جانوروں سے بدتر بول سکتا ہوں؟ دیکھو سب سے پہلے اپنا جس نے آپ کو پیدا کیا وہی سمجھنا پڑے گا. اگر آپ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا نہیں کیا تو پھر کس نے آپ کو پیدا کیا؟ اپنے آپ کو تو خود ارے کو کوئی نہیں پیدا کر میں سکتا ہے. میں بول رہا ہوں نا، کوئی نہ کوئی خالق کائنات ہے، اس کو چھوڑ کے آپ لوگ ایک عربی والے بابا جی کے عربی خدا کے پیچھے لگے پڑے ہیں. کتنے بیوقوف لوگ ہیں. تو بھائی کیا یہ اب عربی میں والا آپ نہیں ہے. یہ صبر کرو. یہ عربی والا نہیں ہے. یہ جب سے عربی سب انسانوں کا خالق ہے. لیکن کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے. سب کا اللہ ایک ہے. اللہ ربنا و ربکم. ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے. اسی نے آپ کو پیدا کیا. ارے تو اب دیکھو، آپ اپنے عربی والے بابا جی کے خدا کو ہم پہ مت تھوپیے. میرا ماننا ہے کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، لیکن اب آپ ایک تو عربی کون ہے؟ بابا جی. صبر کرو. تو کون ہے بتائیے کون ہے؟ اگر میں نہ بتا پاؤں پھر؟ تو بس آپ یہ تو آپ کے میں کیا بتاؤں اس میں نہ بتاؤں. یہ نہیں، ان کوئی سے عقل کی میں تھوڑی بات. بات کروں. علی بھائی چھوڑنا. اگر میں نہ بتا پاؤں پھر کون ہے؟ میں نہ بتا یہ تو پاؤں آپ پھر؟ کی تو پھر جو کرنا ہے کرو. یہ تو آپ کی مرضی کے اوپر ہے بھائی. نہیں دیکھیے، اگر مان لو میری گلی میں، ٹھیک ہے، ایک کتیا مری پڑی ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کس کی ہے. اب میں آپ سے بولوں بتاؤ کس کی ہے، آپ نہ بتا پاؤ تو میں بول دوں گا بیوی ہے. ارے بھائی غالب بھائی کبھی ایسی بات کرو جو عقل مند یار. ہاں تو میں بول رہا ہوں نا. مجھے کسی نے بنایا میں نہیں بتاؤ. یہ کوئی ہو سکتا ہے یار؟ میری گلی میں کتیا مری پڑی، اس کا مالک کون ہے بتاؤ؟ لو جی اس کو جاؤ. ہیں؟ 1 منٹ میری بات سنیں گے.
آپ کی بات سر جی، میں تھوڑی دیر بعد سنوں گا، وکاس بھائی سے نہیں ایک منٹ ایک منٹ کھانے بالکل نہیں سنوں گا۔ وکاس بھائی بتائیے، میری گلی میں کتیاں مری پڑی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ارے یار ایسی بات مت کرو جو عقل بھی نہیں مانی یار، کوئی عقل کی بات کرو بھائی۔ ہاں پوچھ رہا ہوں نا، عقل والی آپ لوگ عقل کی باتیں مت کیا کرو یار، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں بولا میری گلی میں کتیاں مری پڑی ہے، اس کا مالک کون ہے، بتاؤ مجھے۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ کی گلی میں کتی مری ہے؟ جب آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کتیا کا مالک کون ہے، تو اب آپ میری بات مانیے کہ آپ ہی اس کتیا کا مالک ہو۔ بھائی جب آپ نے اللہ کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے ہاں مت مانیے، تو پھر کیوں اللہ اللہ کرتے ہو، ہر روز اسٹریم میں آتے ہو، اسلام اس طرح اسلام اس طرح، اللہ نہیں ماننے، یہی ثبوت ہے، دیکھو یہی ثبوت ہے آپ کی کہ آپ اسٹریم میں آتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ دل میں مان رہے ہو کہ کوئی ہے خالق۔ اب سنو، آپ لوگ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ابلیس کا نام لیتے ہو، تو کیا آپ لوگ ابلیس کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو؟ نہیں، ابلیس تو ملعون ہے بھائی، اس کو کون مانتے؟ نہیں بتاؤ نا، آپ کے قرآن میں بھی محمد نام 4 بار آیا ہے، باقی ابلیس کا نام سب سے زیادہ بار میرے خیال سے آیا ہوگا اللہ کے بعد۔ آپ لوگ اللہ کو سیکنڈ نمبر پر خدا مانتے ہو؟ یار آپ کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں یار؟ نہیں تو ایسے یار بیتوکی باتیں کرو گے تو پھر جواب بھی ایسے الٹے سیدھے پڑیں گے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے نا بھائی۔ نہیں کوئی وکاس ایسی بھائی سے بات میں کر جو تھوڑی عقل بات مانی۔ کرتا ڈوریمون ہوں۔ کا ویڈیو بناؤ تو پھر میں ڈوریمون میں مانتی ہوں، ارے نہیں تو اگر میں اس سے بات کرتا ڈوریمون کا ویڈیو بناؤ۔ جی سر بات کیجیے۔ ہوں۔ وکاس بھائی چلو مان بھی لیں اوپر کوئی خدا ہے، تو وہ کیسے مانیں گے وہ اللہ ہے؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ نہیں، اگر کوئی اور ہو سکتے تو آپ کوئی ایویڈنس دو، اس کا کوئی نہیں ثبوت اگر دیجیے۔ دیکھو نا، ایک چیز کا اگر آپ کو نہیں پتا ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتا، ضروری تو نہیں ہے اس کا نام لیا جائے کہ وہی ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، کس نے آپ کو بنایا؟ نہیں میں تو یہ کیا مانتا ہوں، اگر دیکھے صبر سنے کرو، اگر میں مجھے ایک کوئی بات چیز کا بتاتا نہیں ہوں۔ پتا ہوتا تو میں مان لیتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا، مجھے کسی کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے پروف ملے گا تو میں اس کو مان لوں گا۔ آپ پروف دے دو، میں ابھی مان لیتا ہوں۔ وہی پروف یہی میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ کسی خالق نے پیدا کیا یا خود بن گیا؟ اب مجھے بتائیے، آپ کو کس نے پیدا کیا یا خود آپ کو اپنے آپ بنایا؟ یا تو ایک نہیں بات ہوگا، یا تو کسی نے پیدا کیا یا چلو خود مان اپنے لیتے آپ کو ماننا ہیں، پڑتا ہے۔ چلو مان لیتے ہیں کسی نے پیدا کیا، پھر وہیں پہ آ جاتی ہے بات، وہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہی اللہ ہے؟ چلو علی وہ یہ بھائی ثابت ہوا قرآن کریم سے، صبر کرو، اس کو غالب بھائی تھوڑا سائڈ پہ رہ جائے۔ چلو قرآن کریم پہ اب آتا ہے۔ قرآن کریم تو ایک پہلے ایسا قرآن کریم کتاب کا ہے، ثبوت دو نا۔ قرآن کریم پہ کس اللہ کا ثبوت؟ نہیں پہلے قرآن کا ثبوت دیں گے نا، قرآن یہی کہ ہمارے وہی اللہ سامنے کی جو پڑھا، کتاب ہے۔ یہی نہیں کہ وہ یہ اللہ کی دیکھو، کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اسی نے کہا اگر کوئی یہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں تضادات سب کچھ ہوتا۔ نہیں تمہارے دیکھیں نا، سامنے ہے۔ یہ سنے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا نا، وہ تو آپ مانتے ہیں، پہلے آپ اس کا مجھے ثبوت دیں گے نا۔ ثبوت ہمارے ابھی آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ یار کیا تم اس میں سے بتانا چاہتے ہو؟ دیکھو ہمارے پاس جو ہمارے تک قرآن کریم پہنچ گیا، اسی پہ بات کرنا ہے۔ ٹھیک ہے یا تو اب کہیں کہ مجھے نہیں ماننا ہے، یا کہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے تک پہنچ گیا اسی پہ بات کرنا ہے۔ سر وکاس بھائی، ہم تو مانتے نہیں، آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ آپ ہمیں منوانے ہیں نا، تو آپ بتائیں گے پروف کیا آپ کے پاس؟ دیکھو یہ سب کچھ جو ہے قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اگر یہ کسی اور کا ہوتا نا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ تمہارے سامنے دکھا دیجیے کوئی اختلاف۔ یار ایک دو تو نہیں ہے، اتنے ہیں۔ تم پہلے یہ بتاؤ، ایک آپ بک لے کے آتے ہو، آپ اس کو پروف کرنے کے بجائے آپ اسی کو کھول کے دکھا رہے ہو کہ یہ ہے وہ ہے۔ پہلے آپ اس کا پروف تو کرو کہ وہ وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے۔ دیکھو جی، جو ہمارے تک پہنچ گیا اسی پہ بات کرو، آپ پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو نہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں کا وعدہ ہے۔ دیکھو آپ مجھ پہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو اپنے آپ کو دیکھو، یعنی میں اپنے آپ کو دیکھوں گا تو صاف ظاہر میں پیچھے جاؤں گا، پیچھے جا کے مجھے پتہ چلے گا کسی خدا نے بنایا، تو آپ بھی اپنی بک کو وہاں سے پیش کریں نا جہاں سے آئیے۔ تو یہ ہم تو یہ بھائی ہمارے پاس تواتر ہے،
یہ اللہ کی طرف سے، پھر جبرائیل علیہ السلام کے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اصحاب سے، پھر تبع تابعین سے تیسے آ رہا ہے. چلو سنیں ابھی میری بات سنیں. اگر ہم قرآن پہ بات کریں تو سب سے پہلے وہ دیکھنا چاہیے جس نے اس کتاب کو دیا. اگر وہ اچھا انسان ہے تو ہم اس کتاب کو مان لیں گے. صحیح ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو پہنچ کے اسی پہ بات کریں. ادھر کیوں جانے کی ضرورت ہے بھائی؟ یار وہ کتاب کس نے دی ہے؟ کس کو؟ آپ کو وہ کتاب کس کے ہاتھوں آئی ہے؟ دیکھو یہ جبرائیل علیہ السلام ہوں، وحی کے ذریعے آیا، کتابی شکل میں نہیں، وحی کے ذریعے، لفظی شکل نہیں، میں. کس کو ملا؟ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے لفظی. اگر مان لیں کہ وہ اچھا انسان ہے تب تو ہم مانیں گے یہ صحیح کتاب ہے. اگر وہ برا انسان ہے پھر یہ تو بھائی آپ کی عقل کے اوپر ہے بھائی. ہم تو نہیں آپ یار، اپنے آپ عقل سے مانتے. سنیں وکاس بھائی، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ایک برا انسان کوئی آپ کو بات بتاتا ہے تو آپ اس کی بات مان لیں گے؟ دیکھو آپ اپنے عقل سے مانتے ہیں، ہم اپنے عقل سے مانتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بھائی بہت سے مانتے ہیں؟ لوگ ہوں گے نہیں. دیکھو جو ہمارے سامنے قرآن کریم میں ہمارے تک جو پہنچ گیا پوری تواتر یار کے ساتھ ہے آپ ہمارے پاس. دیکھیں، آپ صرف قرآن کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کس پہ آیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اترا. تو وہیں پہ اسی کا کریکٹر تو دیکھا جائے گا نا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کو قرآن کریم نہیں ماننا ہے. قرآن کریم نہیں ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا وکاس ہے. بھائی، آپ کو ایک بندہ ایک خبر لا کے دیتا ہے کہ یار فلاں بندے نے آپ کے بارے میں کچھ بولا ہے. اگر وہ بندہ جھوٹا ہوگا آپ اس کی بات مانو گے؟ نہیں مانے گا، لیکن وہ تو صادق المصدوق ہے. تو یہی ثابت ہوگا نا. پہلے آپ محمد کے کریکٹر پہ بات کریں گے. محمد کے کریکٹر پر کسی نے کبھی عرب نے 1400 سال سے آج تک کسی نے اعتراض کیا تھا کیا؟ کہاں سے اعتراض کریں گے بھائی؟ جب آپ لوگ بچی بازی کو بھی صحیح بتا رہے ہو، کوئی سانٹ کسی بچی پہ چڑھ جائے اس پہ بھی صحیح بتا رہے ہو، کہاں سے یہ کوئی تو اعتراض تمہاری کرے گا؟ سوچ ہے نا، یہ تمہاری سوچ ہے، تم اپنی عقل سے بول رہے ہو نا. ارے بھائی وہی بول رہا ہوں نا، جو وہی سب وہ لوگ بھی کرتے آ رہے تھے وہی سب حضور بھی کیے، الٹا سنت بھی بنا دیے، تو اعتراض کون کرے گا؟ اب تم اچھی باتوں کو بھی گندی بنا دو تو اس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے نا. تو بھائی میری نظر میں یہ گندی بات ہے، آپ کی نظر میں اچھی بات ہے، تو اگر آپ کوئی کریے. اپنے بستر پہ اپنی بیوی کو اگر سائڈ کر کے نماز دیکھو پڑھ بھائی، رہا ہے تو میں تم اس آپ کو ثابت کر رہے عمل ہو کہ کیا ہے. ان کے اوپر چڑھ کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ طریقہ ہے بھائی کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ ایسے آپ یہ بولے صاحب تمہاری دیکھ کے آ سمجھ رہے ہے نا. کسی کے بدن پہ کوئی چڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ ہیں. پتا نہیں بھائی، کرنے والے تم نے اب دیکھا یہ ہوں. سنو نہیں تم ویڈیو جاتی ہے بتائے ہو کوئی نا. سنو ویڈیو جاتی ہے، کوئی پیڑ پہ چڑھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سوئمنگ پول کے اندر سمندر کے اندر جا کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی تو ویڈیو دیکھ رکھا ہوں میں. تو کچھ کیا جاہل بھروسہ ہوں اس گے تو کا؟ کیا سارے ویسے ہی ہیں؟ اب پتا نہیں وہ آپ ہی لوگوں کی جماعت کے ہوتے ہیں، لیکن اتنا پتا ہے. قرآن عرب میں آیا تھا یا ہندوستان پاکستان میں آیا تھا؟ ویڈیو پوری دنیا سے آ رہی ہے، بڑی اچھی والی. یہ ویڈیو کوئی بھی بنا سکتا ہے. ایک ہندو بھی مسلمان کے حساب سے کپڑے پہن کے بنا سکتا ہے. کپڑے سے کسی کا دین اور ایمان پتہ چلتا ہے کیا؟ کپڑے سے نہیں پتا چلتا بھائی، جا کے نماز پڑھتے پورا باقاعدہ. کس پہ اتنی فرصت ہے یہ سب بکلولی کرنے کی؟ کوئی نہیں پڑھتا. یہ سب وہی ہے جو اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں. ٹرینوں میں تو ہم نے خود دیکھ رکھے ہیں، بس اسٹینڈ پہ ہم نے خود دیکھ رکھے ہیں. کیا کب تک جھوٹ بولو گے بھائی؟ کچھ تو لمٹ رکھو، تو کچھ کیا وہ تو. پیڑ پہ چڑھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ڈانس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ پیڑ پہ دیکھوں گا اپنی یہاں سے تبھی مانوں. یہ سب ویڈیو جا رہی کیا ہے یہ سب؟ پیڑ پہ کوئی نماز پڑھتا ہے؟ اس کو تو لاجک اب بھی قبول نہیں کرتا. ویڈیو جائی بولے تو کبھی آپ کو ویڈیوز تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا. بول رہا ہوں نا، تم بھی بنا سکتے ہو اپنے حساب سے. مسلم لباس سے کسی کا دھرم پتہ تھوڑی چلتا ہے. میں بھی ہندو کپڑا پہن لو تو کوئی بولے گا ہندو ہی ہے. نہیں تو میں کیا بول رہا ہوں، بگوا دیکھو پہن کے. جس پہ جتنا خالی وقت ہوگا وہی یہ سب بکلولی کرے گا نا. اور خالی ہاں ہوتا آپ تو لوگوں ہے کو نا، بہت سے لوگوں کو خالی وقت ہے. اب آپ کے پاس کتنا وقت ہے صحیح بات کو غلط کر کے ہے نا کیسے بھی ذلیل کرنے کو. کسی کو یہ دین کو ذلیل، مسلم کو ذلیل کرو، نہیں اسلام میں خامیاں نکالو.
वक्त ही है ना आपके पास, कितना टाइम हो गया, 2:51 हो गया, अभी तक बैठे हैं, कितने बजे से लगे थे? सुनो सुनो, मैं ये बता रहा हूँ, जिस गड्ढे में मछली ना हो, ठीक है, उसमें कितना आप कटिया लगाओगे कि मछली पकड़ लो? नहीं, अकल जो है ना वो अरब के लोगों का ज्यादा था उस वक्त से लेके आज तक, या तुम्हारी अरे ज्यादा है? मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है, मैं बोला हूँ किसी गड्ढे में मछली है ही नहीं, तो आप कितने दिन तक कटिया लगाओगे कि मछली आप फंस जाए आपके कांटे में? मैं क्यों लगाऊंगा जब उस गड्ढे में मच्छी नहीं है तो? हाँ, तो आप हमें ये इल्जाम ना दे कि आप लोग इस्लाम में गलतियां ढूंढते रहते हो। अरे भाई, आप मान गए हो ना इस्लाम में गलतियां नहीं है, तो परेशान बेशक मत हो। नहीं है, इस्लाम में गलती मेरा ईमान है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इस्लाम में परेशान मत गलती हो ही नहीं सकता है। हाँ, निकालने वाले बहुत है, निकालो, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता इससे, इस्लाम को कितनी भी गलती निकालो, जलील करो, कुछ भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब जब अकल वैसे सही बोल ले रखी हो तो कहाँ से फर्क पड़ेगा? नहीं वैसे गालिब आप नहीं नहीं गालिब भाई, सुने, आपके एक रहने से भी इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा। जी फायदा एक तो है, 10 मसीर साहब एक फायदा 10 इस्लाम सेकंड को नहीं, फायदा मुझे है, इस्लाम को फायदा थोड़ी होता है। हाँ, तो कल से सुपर चैट वगैरह दीजिएगा। आप लोग मौलानाओं को बहुत पैसा दे दिए, अब हमसे फायदा है तो हमें दीजिए। तुम्हारे पास इल्म होना चाहिए ना, इल्म ही नहीं है तुम्हारे पास तो फिर पैसा तुमको अरे क्यों दूं? भाई, इल्म अपना हो इल्म चाहे ना, आप साबित तो करो कि हाँ मेरे पास इल्म है। इल्म हो या ना हो, आप बोल रहे हैं ना कि हमारे कामों से इस्लाम को फायदा हो रहा है। आप तरीका मैं छोड़िए, नतीजे। इस्लाम को फायदा मैंने नहीं बोला, मैं बोला इस्लाम को फायदा नहीं, मुझे फायदा है, मेरे को फायदा है, आपको क्या फायदा है भाई? क्योंकि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। तो इसमें फायदा क्या है आपका? आप तो पहले भी कर रहे थे। फायदा ये है कि मुझे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत मिल रही है। अरे यही बैठे बैठे कहाँ आपको क्या फायदा, ये तो बताओ हम लोग की स्ट्रीम से। फायदा मिल रही है ना मुझे, क्या फायदा है? बोल तो दिया, दुनिया और आखिरत दोनों में हमें इज्जत मिल रही है। तो हमारी स्ट्रीम से पहले दोनों जगह जलील हो रहे थे आप? कभी नहीं, तब तो फायदा क्या है तो हमारी स्ट्रीम 1400 का साल आपको? से आज तक हम की बात कर रहे हैं हम। आज क्या, हाँ, तो आज आया इस्लाम मसीर क्या? भाई मसीर भाई हमारी एक स्ट्रीम जस्ट से फायदा एक क्या है क्वेश्चन आपको? पूछेंगे। गालिब साहब एक क्वेश्चन पूछेंगे बस मसीर भाई से, कि मसीर भाई आपको ज्यादा फायदा इस्लाम से होता है या काफिर लोगों के बनाए हुए चीज से? नहीं, काफिरों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नहीं, काफिर की बनाई हुई चीजों से आपको ज्यादा फायदा होता है या उनकी इस्लाम से चीजों ज्यादा? से, काफिर की बनाई हो, ईसाई की बनाई हो, किसी की बनाई हो, या इस्लाम की बनाई हो, ये दुनिया में हम कोई भी कर सकते हैं, दुनियावी चीज है ये, दुनिया में असबाब के तहत हम किसी से भी मदद ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, सिर्फ जी दीन में नहीं है। नहीं, जी 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 मसीर भाई, तो मैंने आप जो बोल रहे थे ना, आपको इज्जत यहाँ भी है और आखिरत में भी है, तो इज्जत आपको हाँ, मिल रही है और साइंटिस्ट काफिर बन रहे हैं, आपको नहीं नहीं, लगता है ऐसा? साइंटिस्ट काफिर बन रहे हैं तो साइंटिस्ट की अपनी सोच है ना। नहीं नहीं, और उसी साइंटिस्ट के बनाए हुए इंटरनेट से अभी आप बात कर लेते हैं और आप फिर गुनगान अल्लाह की ले लेते हैं। नहीं, ये तो आपका सोच है ना, मैं मेरा सोच ये है कि वो साइंटिस्ट को भी बनाने वाला वो अल्लाह ही है, और उसको इतना अकल देने वाला वो अल्लाह ही है। और पर अल्लाह की जमीन मुसलमानों भी को नहीं चलता दी। है। नहीं नहीं, मुसलमानों को नहीं दी। मुसलमान क्यों नहीं है, क्या मुसलमान कहाँ नहीं है? नहीं, सारी अक्ल काफिरों को क्यों मिली है वैसे? कहाँ पे मुसलमान है कि ये तो अल्लाह ताला, सिर्फ काफिर है? देखो भाई, देखें ये तो आप अल्लाह ताला ने नोबेल पहले कहा नोबेल कि नोबेल प्राइज का लिस्ट देख लें, आपको काफिरों की नोबेल संख्या छोड़ो बहुत यार। ज्यादा मिलेगी। नहीं, नोबेल प्राइज की बात छोड़ो, कोई ऐसी चीज मैं बताओ जिसमें है ना मुस्लिम शामिल नहीं है या वो काम नहीं कर रहे हैं। बता रहा हूँ ना, सुनो। नासा में, मंगल ग्रह पे, चांद पे, यहाँ मुसलमान नहीं गए, वजह एक थी, वहाँ मस्जिद नहीं है। बोलो वहाँ मुसलमान गए हैं? वहां जाने की जरूरत ही नहीं है ना। वही तो बोल रहा अरे हूँ, मस्जिद नहीं है वहाँ पे।
काले भाई वहाँ पे किबला कौन सा होगा यार, आप भी कैसी बातें कर अरे किबला छोड़ो, साइंस पहले की बात मस्जिद जब बनो। लाए तो आज तक कोई ऐसा साइंस है जो आसमान तक चला गया हो, या आसमान कहाँ है पता कर लिया हो कि उसकी दूरी क्या है? नहीं भाई, सर यहाँ तो हर आसमान मतलब आप क्या समझते हैं? बात साइंस की कर रहे हैं तो मैं भी एक लॉजिक लगा हाँ, रहा तो हूँ। आप जब आसमान बोले, आसमान मतलब आप क्या समझ रहे हैं? आसमान क्या है? आसमान क्या है? जो हमें दिख रहा है वही आसमान है ना। हमें तो पता करना है कि क्या वहाँ कोई गया है आसमान पे। तो भाई अगर आपको आसमान जो दिख रहा है रात को तो वो गैलेक्सी है, ठीक है। और अगर आप क्लाउड्स का बात करें तो फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहता है। तो आप किसका बात कर रहे हैं? आप क्लाउड्स का बात कर रहे हैं या फिर आप गैलेक्सी का बात कर रहे हैं? गैलेक्सी का हाँ, तो गैलेक्सी नहीं देख रहे हम लोग? देख रहे हैं ना, लेकिन क्या वहां तक कोई गया है? हम लोग मार्स में नहीं गए? गया, एक बंदा गया है। नहीं नहीं, वही जो तो। भी गया चांद के पास ही गया, चांद के ऊपर कोई नहीं गया। अरे कौन उससे बोला? ऊपर भी गया मार्स एक कहाँ बंदा। है भाई? क्या अरे बोल रहे हो? चांद से नहीं, आसमान कितनी दूर है? मसीर भाई सिदरतुल मुंतहा मार्स से ज्यादा दूर है क्या? सिदरतुल मुंतहा या उससे पहले पड़ता है, मार्स से पहले? वो अल्लाह का हुक्म था। नहीं तो वो अल्लाह चाहा तब हुआ। नबी अल्लाह तो चाहेगा तभी हो सकता है, अल्लाह नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है। एक इंसान इतने दिन से दुनिया है, आज तक एक भी साइंस ने किसी ने ऐसा करके दिखाया किसी इंसान की जान जा रही हो और उसे बचा लिया हो कि तो आप मुर्दा मर गया हो भी कब्र में और उसे सुनो उठा दिया हो? किसी सुनो साइंस सुनो, ने ये आप भी, करके दिखाया? अरे सुनो, आप बीमार पड़ने पे हॉस्पिटल जाते हो या मस्जिद जाते हो? हॉस्पिटल भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। हॉस्पिटल क्यों जाते हो? हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि असबाब के तहत दुनिया में तुमको जो फायदा पहुंचा सकती है उसको इस्तेमाल करो। वो भी काफिरों की। किसी की भी, कोई भी, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा जी, फायदे के चक्कर में सब चलेगा है। फायदा क्या, फायदा ही है ना, दुनिया में है, दुनिया का असबाब सबके लिए है। वैसे ये बिल्कुल। मुनाफिकत नहीं है? अभी अभी मुस्लिम ये मेजोरिटी कंट्री, मुनाफिकत नहीं है। ये सुनो, अभी मुनाफिकत तब होती जब अल्लाह ने मना किया होता है या रसूल ने बोला होता। अरे सुनो सही, अभी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बन जाए ना, तो किसी गैर मुस्लिमों के लिए वो कंट्री ही नहीं बचेगी, और आप लोगों के लिए सब कुछ है। वाह भाई वाह। अगर ऐसा होता ना, आधी दुनिया में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में हुकूमत थी, आज कितने में है? अरे वाह, क्या बात, इतना मजबूत पॉइंट। मैं एक साल बाद इसका जवाब ढूंढ के लाऊंगा। अच्छा मिर्जा भाई, मसीर भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हुजूर जब खुद थे तब उस टाइम में ना ही कंप्यूटर था ना ही इंटरनेट थी, तो और आज देखें कि हम लोग हमें अपने घर पे बात करना होता है, रिलेटिव से बात करना होता है, हम फोन उठा के बात कर लेते हैं तुरंत 2 मिनट में। तो हुजूर के टाइम में अल्लाह ने ऐसा फैसिलिटी क्यों नहीं दिया हुजूर को जो काफिरों को वो दिया? हर हर चीज का एक वक्त होता है। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त रखा है। अल्लाह ने नबी का सिलसिला भी रखा उसी वक्त तक जब उनको लगा कि उसको लगा अल्लाह को कि हाँ दुनिया में इसकी जरूरत है। उसके बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर कह दिया गया क्योंकि इसके बाद अब जरूरत नहीं है। नहीं तो अभी देखिए, अभी एक पैगंबर अल्लाह भेज सकता था ना, अभी हुजूर को भेज सकते थे। अब हुजूर हाँ, एक आखिर में मोटिवेशनल, भेजेंगे ना, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे ना। उनकी भी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। मॉब लिंचिंग कौन मुसलमान कर रहा है? यहाँ तो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो रहा है। नहीं, वो पहले तो जब कहेगा कि मैं छाना नबी बन के आया हूँ तो पहले तो उसको कहेंगे पकड़ो। क्यों वकास नहीं भाई? नहीं, वो नबी बन के नहीं आएंगे ना। वो उम्मती बन के आएगा, उम्मती। अच्छा अच्छा, दावा क्या करेगा? क्या दवा? कुछ दवा नहीं, ये अल्लाह की तौहीद पे चलेगा। अब देखो, मिसाइल के जमाने में वो बेचारे तलवार लेके आएंगे, सोचो उनका क्या हशर होगा। नबी के हाथ में लकड़ी भी है तो मिसाइल के सामने कुछ नहीं है, उसके सामने, उस लकड़ी के सामने। सही बोल रहे अच्छा, हो ना। एक सेकंड, आपका लॉजिक कहता है कि ऐसा हो सकता है?
लॉजिक नहीं कहता फिर भी हम मानेंगे। फिर आप तो ये इलॉजिकल हो गए ना। असली नहीं, ईमान ये वाले लोग एक मौजूदा होता है। सब मौजूदा में कोई लॉजिक नहीं, हम अपनी अकल नहीं लगा सकते वहाँ। अल्लाह ने जो मौजूदा दिया है वो हक है। मसीर अकल भाई, है, अगर अकल है। आपको अगर आपको अल्लाह एक बिस्किट का पैकेट देगा, उसके अंदर बहुत सारा बिस्किट है, तो आप बिस्किट का पैकेट खा लेंगे कि अकल लगा के पैकेट फाड़ के अंदर से बिस्किट निकाल के खाएंगे? इसमें अकल कहाँ है? ये तो बच्चे को भी देंगे तो उसको मालूम है कि बगैर फाड़े नहीं खा सकते। ये असबाब है दुनिया, असबाब। मैंने क्या बोला, असबाब में कोई इख्तिलाफ नहीं है, असबाब में किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, बात खत्म हो जाती है ना। ये पहचानते कैसे हैं कि ये असबाब है? अकल नहीं दिया ना। अकल नहीं है क्या? नहीं तो एक अकल जगह नहीं आप दिया अकल है लगा अल्लाह ने। देते हैं, एक जगह नहीं लगाते हैं, तो ये पहचानते कैसे हैं नहीं, कि कहाँ अकल नहीं, ये लगाना है वो कहाँ तो नहीं? ये जहाँ तो पे अल्लाह के अल्लाह ने फैसले है ना। जहाँ पे अल्लाह ने कहा ये मौजिज़ात है तो मौजिज़ात समझना चाहिए, जहाँ पे अकल के लिए बोला तो अकल इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे वकास भाई, अकल की रोशनी में कोई भी चीज सही और गलत हो सकती है ना। भाई ये तो आप हेलो लोग की मर्जी के ऊपर है। हेलो नहीं, अकल के नजदीक कोई सी भी चीज हो उसको सोचेंगे तो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, राइट? ये इसमें क्या कह सकता हो, हेलो लेकिन जितना नहीं, अकल अल्लाह ताला मिर्जा भाई से बात कर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक एमडी इस्माइल भाई हैं, लिखे मिर्जा गालिब की धुलाई आज मुफ्ती यासिर अल-वाजिदी के लाइव चैनल पर। हा 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 हा। अरे भाई आप स्ट्रीम में आओ, मुझे बता दो मेरे किस मसले में धुलाई हुई है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं चल पा रहा है। हद है यार। अच्छा वकास भाई, मैं आपसे पूछ रहा था लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक के नजदीक कोई सी भी चीज हो उसका सही या गलत होना मतलब चेक करने के बाद ही होता है ना। नहीं इस तरह नहीं है। जो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज रखा है जो वकास उस भाई तक आपका देखे अकल मैंने नहीं आपका अकल नहीं अल्लाह की पहुंचा बात है। नहीं, मैंने अल्लाह की बात नहीं की, मैंने आपकी सोच की बात की है। लॉजिक क्या होता है? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अब बोलिए। कोई किसी भी चीज को आप उठाएंगे, आप उसको देखेंगे, आप ये तो नहीं सोचेंगे ये चीज बिल्कुल ठीक है। ये गलत भी हो सकती है और ये सही भी हो सकती है, राइट? जी जी जी। तो कभी कुरान को आपने सही और गलत दोनों नजरिए से देखा है? तो इसमें कुछ आप जब आपको अरबी मालूम रहेगा, जब आप पढ़े रहेंगे उसकी ग्रामर के साथ सिर्फ अरबी। नहीं, सुने, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप अरबी पढ़ें, उर्दू पढ़ें। मैंने आपको दो रास्ते बताए कि आप इसको गलत और सही दोनों नजरियों से पढ़ा है। हाँ जी मैंने पढ़ा, मैंने बेशक बहुत कोई गौर सही किया, पढ़ेगा। मैंने बहुत गौर किया। इसमें कोई शक ये इंसान के कलम हो नहीं सकता। जिस तरह कुरान करीम में जो हुरूफ इस्तेमाल हो गया अरबी का, और हर चीज़ के लिए अलग अलग, ये एक इंसानी कलम हो नहीं सकता, वो फिर ग्रामर के हिसाब से। देखिए, ये आपने जो बात की है ना कि इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, ये तो आप वो अकीदे वाली बात कर रहे हैं ना। आपको एक मतलब नहीं सोच अगर रखनी। देख, सब्र करो। अगर आप कहते हैं कि इसमें गलती है तो फिर हम पहले आपका टेस्ट लेंगे। एक आयत हम आपको दिखाएंगे कि भाई इसका तर्जुमा हमें बताइए वो ग्रामर के साथ, फिर आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। जब आपको कुछ मालूम नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हो कि इसमें गलती है? ये मुझे बताइए। यार सर मैं अगर गलत और ग्रामर राइट है तो जी बोले तंजील भाई। सर अगर ग्रामर राइट है तो कुरान राइट हो जाएगा। क्या बोले जी मुस्लिम? अगर ग्रामर राइट है तो कुरान राइट हो जाएगा। भाई इसमें अल्लाह ताला ने कहा है 14.5 साल पहले, अगर ये कुरान करीम किसी इंसान की तरफ से होता ना तो इसमें गलती होता। इसमें कोई गलती की गुंजाइश है नहीं। सर अगर मैं एक तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दूं तो अब उससे पहले मैं आपको एक आयत दिखा दूंगा, पहले ग्रामर के, पहले फिर अरबी का। अगर ग्रामर आपने लेकर मुझे मैं क्या करूंगी? मेरे को स्कूल टीचर बनना है, मैं ग्रामर लेकर क्या करूंगी? अगर वहां पर जब कॉन्ट्रडिक्शन है नहीं, तो जब इसका आपको मतलब अल्लाह ताला को नहीं सब्र पता। करो, जब नहीं आप
जब आपको ग्रामर का पता नहीं है तो फिर कुरान करीम का कैसे पता रहेगा? वकास साहब, इनको कुरान भी इनके अपने हिसाब से चाहिए, जो ये मानी करे हाँ, वही सही यही मानो। अच्छा वही सर, सही बात। एक बात बताए, अल्लाह ताला ने पहले पहाड़ बनाया या चांद तारा बनाया? क्या बनाया पहले? नहीं, आप पहले बताइए फिर हम बताएंगे। आप पहले बताइए, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि कुरान सही है, इस्लाम मजहब सही है, तो आप पहले बताइए आप तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले उन्होंने पहाड़ बनाया या पहले उन्होंने सितारे बनाए? क्या बनाया उन्होंने? पहले उन्होंने जब अर्थ क्रिएट हो रहा था, जब दुनिया बन रहा था, तो उन्होंने पहले माउंटेन्स बनाया या स्टार्स बनाया? क्या बनाया? पहली जमीन बनाए। पक्का लॉक कर दिया तो जाए? आप बता दीजिए ना कहाँ नहीं, चीज आप क्या, लॉक कर दिया जाए। तो आप बताइए ना। आप चलो कंफर्म आप बताइए, आयत दिखा स्टार दीजिए। बनाए या माउंटेन बनाए? या स्टार की बात अलग आती है, पहली जमीन बनाया, फिर दोनों को कहा कि इताअत के साथ आ जाओ, इस तरह बोलो। कुरान करीम में लिखा है माउंटेन्स, पहाड़ 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 बनाया पहले या स्टार्स बनाया पहले? क्या बनाया? स्टार। पक्का लॉक कर दिया जाए? नहीं, वो पूछ रहा है वकास भाई, ये बताएं पहले जो आसमान है, आसमान पहले बनाया या फिर पहले जमीन बनी? पहाड़ या जमीन, कोई भी कह दे। पहले जमीन बनी। पहाड़ भी, मतलब पहाड़ भी साथ ही बने ना जमीन के? नहीं, पहाड़ तो बाद में बनाई। आप मुझे बताइए, अगर आपको अरबी मालूम है, रवासी और जिबाल में क्या फर्क है? देखिए, अगर हम सुने सवाल करते हो, सुने ना, आप पहले बात सुन लें, पहले बात समझ लें। पूछा जा रहा है कि आप अरबी जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, हम आपकी नॉलेज की बेस पे बात करें, ठीक है? जमीन और जो पहाड़ हैं वो एक साथ ही बने या अलग अलग बने? नहीं, ये तो इसमें मुख्तलिफ बताया ना। मुख्तलिफ बताया मतलब आसमान, जमीन पहले बनी, आसमान बाद में बना, फिर पहाड़ बने, ऐसी? आप बताइए, मुझे तो इतना जानकारी। आप यार देखें वकास भी, आप कैसे मुस्लिम हैं? आपको तो इतनी नॉलेज है, आप हमें सिखाएं। नहीं, अगर मुझे मालूम नहीं होता तो मैं कल उसका जवाब लेकर आऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं, आप बताइए कहाँ ऐसा है। यार मतलब आपको नहीं पता? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है, लेकिन आप बताइए। तो सर मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दीजिए कि माउंटेन्स पहले बनाया अल्लाह ताला ने या स्टार्स पहले बनाया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सीरीज होता है ना, एक प्रोसेस होता है। अगर मैं ऑमलेट बनाने जाऊँ तो फिर पहले मैंने अंडा निकाला फ्रिज से, मैंने उसको तोड़ा, फिर नमक दिया, ये दिया, फिर मैं बनाई ना ऑमलेट। मैं तो ऐसे नहीं कि मैंने पहले पैन में नमक डाला, फिर तेल डाला, फिर अंडा लाके तोड़ा, नहीं ना। तो फिर तो अल्लाह ताला ने पहले क्या किया? माउंटेन्स बनाया या स्टार्स बनाया? वो बोल रहे हैं ना, अभी उनके इल्म में नहीं है, आपको बाद में बताएंगे। तो नहीं, जब वो बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, तो प्लीज बताएं अल्हम्दुलिल्लाह आंसर क्या है? नहीं, तो जमीन की कई किस्में, किस तरह कई मराहिल बताया जमीन बनाने के लिए। इस तरह तो नहीं है कि एक जगह बताया कि अब जमीन बनाया। जी बताया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नहीं पता, लेकिन नहीं वकास भाई, तारीफें अल्लाह के लिए है। सुने अब वकास भाई, आप अपने हिसाब से बता दें जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से कि दुनिया और आसमान कैसे बने। मैंने जो पढ़ा, अल्लाह ताला ने पहले जमीन बनाया और फिर इसके बाद आसमान। अच्छा, मतलब पहाड़ों का जिक्र नहीं है यहाँ पे? पहाड़ों का जिक्र है, बैलेंस, जमीन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया। लेकिन स्टार का जो बोल रहे हैं, तो स्टार का मेरे इल्म में भी अभी नहीं है। अच्छा, तो सर जमीन को किसके ऊपर बनाया गया? किधर बनाया गया? पानी किधर रहा था? पूरी दुनिया ही पानी की। जमीन आया कहाँ से, ये बताइए मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बता रही हूँ। अगर मान लो मैं अल्लाह हूँ, मैं कहती हूँ एक जगह में कि मैंने पहले पहाड़ बनाया, फिर मैं सितारा बनाई, लेकिन दूसरी जगह में मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने पहले सितारा बनाया फिर मैं पहाड़ बनाई, तो ये गलत बात, मैं दो तरफा बात नहीं कर रही हूँ। ये आपके समझ से बाहर है, इसलिए कहते हैं। आपको अरबी मालूम नहीं है ना? मैं आप दिखा दीजिए कहाँ लिखा है।
ठीक कहाँ है, लिखा है, चलिए दिखा दीजिए। चलिए 2 मिनट दे, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बात करें। हाँ तो विकास भाई विकास भी मतलब सब चीज का लिखा होना जरूरी है? कोई चीजें इंसान अपनी ज़हन से नहीं सोच सकता? नहीं, इस तरह नहीं। अगर अगर हमें मालूम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान में गलती है। नहीं देखें, अगर इस चीज को साइड पे रखें, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर सकते। हाँ, यूज करते। अल्लाह ने कहा अफला ताक़िलून, अफला ततफक्करून, गौर फिक्र करो ये जमीन और आसमान की पैदाइश में। लेकिन नहीं, इस तरह गौर तो और नहीं है कि फिक्र, सुने, गौर और फिक्र उसके बुक को छोड़ के बाकी चीजों पे करें, उस पे नहीं करें। हाँ, सब में करे, इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। तो गौर और फिक्र करने के लिए उसको पहले सही समझ के पढ़ना जरूरी है, या सही और गलत दोनों समझ के पढ़ना जरूरी है? देखो जी, अल्लाह ताला ने अकल दिया उसी हिसाब से, और फिर अल्लाह ताला ने इंसान को समझ बूझ दिया, उसी हिसाब से समझना पड़ेगा ना। तो आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा है कि वो चीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक है। कुरान करीम के बारे में तो कोई शक ही नहीं है इसमें तो पीली से ला रही बती है, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं देखें, ये शक वाली बात तो आप दूसरों से फॉलो करके बता रहे हैं। आपने कुछ ऐसा पढ़ा जो आपको लगता हो कि इसमें शक नहीं है, शक करके भी? नहीं, मुझे नहीं, कहीं मुझे नहीं हुआ। ये साबित अल्लाह ने पहले ही कर दिया है। जब कुरान की वही उतर रही थी तब मक्का में चैलेंज किया गया था। अगर मक्का वाले उसका जवाब दे देते तो है ना कुरान गलत हो जाती उसी वक्त। मसीर भाई अल्लाह ने जमीन पहले बनाया या पानी पहले बनाया? पानी के ऊपर में जमीन बनाया, तो आप नजर उठाते हैं आसमान की तरफ तो आप कहीं पानी देखते हैं जमीन के अलावा? कहीं देखे हैं? और पूरी जमीन ही पानी थी, अल्लाह का अर्श भी पानी पर ही था। पानी, अच्छा एक बात बताइए, आप पानी को एगो बाल्टी में लेते हैं, लोटा में लेते हैं, कोई एक चीज में लेते हैं ना जी? पानी को तो कोई एक कंटेनर में रखना पड़ेगा ना, है ना? हाँ। तो कंटेनर होनी पड़ेगी। अगर जमीन अल्लाह सभी जगह पानी है तो वो कोई एक कंटेनर में होगी। भाई अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, कहाँ समझते हो? अल्लाह कुछ भी कर सकता है। ये तो इंसान के लिए मुश्किल है, अल्लाह तो कादिर मुतलक ज़ात है, उसके लिए क्या? ये जमीन का जो अच्छा, ये तो अल्लाह के लिए कहाँ से लाया? अल्लाह के लिए झूठ बोलना भी फिर पॉसिबल है? वो भी मुमकिन है अल्लाह के लिए? अल्लाह क्यों झूठ बोलेगा? सिफत अल्लाह की नहीं है भाई, अल्लाह क्यों झूठ बोलेगा? आप ही तो बोल रहे हैं अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? सब कुछ करने का मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आप कहें कि मैं आपसे कहूँ कि ये जो दुनिया के जो मटेरियल ये कहाँ से आया, ये मुझे बताइए। अल्लाह ने कहा ना, विकास भी अगर मटेरियल का पता ना लगे तो अल्लाह का पता चल गया ना कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने कहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मटेरियल का पता ना चले तो इससे क्या मुराद होता है कि वो सिर्फ अल्लाह ने बनाया है? मैं समझा नहीं, आप फिर से दोहराइए। मैं वही कह रहा हूँ पिछली वाली बात कि एक चीज का अगर हमको नहीं पता तो हम किसी पे क्यों थोप दें कि वो उसी ने बनाया? भाई आप तो पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे किसने बनाया और किसके लिए बनाया, मुझसे क्या चाहता है। ठीक, मैं बता देता हूँ। फिर आपको सब धर्म को देखना पड़ेगा, उसका किताब देखना पड़ेगा, फिर कुरान करीम को देखो, इसमें सोच और फिक्र करने की बात करो कि इसमें ये किसका किताब है। तो इसी में सब कुछ लिखा है, जमीन का भी लिखा है, आसमान का भी लिखा है, इंसानियत का भी लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो फिर उसी पे जाना पड़ेगा ना। वकास भाई आप तो ऐसी बात करें कि अगर एक 4 बेईमान है तो उसमें से देखेंगे कौन सा कम बेईमान है, ये नहीं देख सकते कि वो सारे बेईमान हैं। तो आप साइंस से साबित करो कि दुनिया जब नहीं था तो क्या था। बिल्कुल सर, कम से कम ये तो साइंस को पता है ना कि पानी नहीं था पहले। नहीं पता है ना, क्योंकि वो उस टाइम में साइंस था ही नहीं। किसने कहा बोला नहीं पता? साइंस बताता ही नहीं उस वक्त का। किसने कहा नहीं बताता है? साइंस तो बिग बैंग के बाद सारा चीज बताता है। बिग बैंग बाद में आया है। उससे पहले क्या था? बिग बैंग तखलीक के बाद आया, तखलीक से पहले की बात करना है, जो कुरान के अलावा भी कोई बताता है। वो मुहतरमा एक आयत के साथ निकल गया, उसको इतना मालूम है कि कहाँ लिखा। मैं बता देता हूँ उसको, बोलो सूरत निकाले, शायद 10 नंबर आयत, उसी में सब कुछ है। नहीं वो ढूंढ के आएंगे, ठीक है ना? अरे उसको इतना मालूम नहीं है, आयत मालूम नहीं है,
अरे मैं वेट कर रही हूँ आप लोग का बात का, मैं रेडी हूँ, मैं वेट कर रही हूँ आप चलो लोग का जी जी बात का। आप तंजीला बताइए जी पेश ठीक है करें। बहना जी अरबी बोलिए चलो अब अरबी चुप, अब अरबी चुप, अब चुप, अब चुप, अब चुप, अब चुप, शांत। समीर जी शेयर कर दे। तो अभी हम लोग कुरान 79:27 में है। दिख रहा है सबको? जूम करूँ, कुछ करूँ? जिसको नहीं दिख रहा वो मोबाइल की स्क्रीन को डबल फिंगर से जूम कर ले। कोई पढ़ दे मेरे लिए, पढ़िए यहाँ से। उसके लिए पढ़िए। पढ़िए। मेरे मोबाइल पे तो नहीं आ रहा सही से। वकास भी आप ही पढ़ लें। नहीं आप लोगों ने निकाल आप ही पढ़ी, आप लोग मतलब समझते हैं। मेरा गला खराब है, पढ़िए आप। अब गला खराब हो गया भाई, आपको मालूम है आपने तक अच्छा ठीक है, चलिए निकाले। चलिए, रोइए मत, रोना नहीं, रोना नहीं। Are you a more difficult creation, or is it the heaven Allah constructed? He raised its ceiling and proportioned it, and he darkened its night and extracted its brightness. And he darkened its night and extracted his brightness. And after that, what? And after that, he spread the earth. He extracted from its water and its pasture, and the mountains he set firmly. समझ में आया सबको? नहीं नहीं आप अरबी बोली, पता क्या बुला रहे भाई, अरबी बोलिए, उसका वर्ड बाय वर्ड तर्जमा करें। आपको क्या बोल रही? आपको अरबी आती है? आपको आती है, आपको मालूम है, आपने इतराज उठाया। एक मिनट, अभी आप, मैं अच्छा, कुछ बता रही हूँ, आप सुनिए। वकास भाई बता अगर रही हूँ, अरबी, सुनिए। एक मिनट बहन एक मिनट, अगर अरबी में पढ़ देंगे तो आप मान लेंगे फिर तब? हाँ मैं मान लूंगा। अच्छा ठीक है। ये आप कौन सा आयत है ये? 27 से ये पढ़ना है। 79, आप 79 आयत 27 से 32 पढ़े जी। अंतुम असदु खलकन अमी अल शमसु सबर बनाहा। हाँ आइए जी। अंतुम अशद्दु खल्कन अमी, ये क्या बोला? पहले अरबी सही बोलो, इसका वर्ड बाय वर्ड। अंतुम, अरे भाई अंतुम, आप हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए अंतुम, ये आर यू सही है? अंतुम अशद्दु खल्कन, इस तरह बोलो। अच्छा ठीक है, मैं एक एक वर्ड पकड़ के करता हूँ। अंतुम का मतलब आर यू, सही है? जी जी क्वेश्चन मार्क वाला तंजीला जी उर्दू में भी निकाल। उसके बाद देखिए असहदु डिफिकल्ट के लिए यूज करेंगे। अशहदु ने अशद्दु अशद्दु सख, अंतुम अशद्दु खल्कन। अरे यार डायलेक्ट नहीं आता है यार, डायलेक्ट में समीर भाई पढ़ दे। उर्दू भी मैंने निकाल दी, यहाँ पर है। जी हम डायलेक्ट में नहीं पढ़ सकते हैं, हम डायलेक्ट में नहीं पढ़ पाते। अरे यार क्या माजरा है, यहाँ पर लॉजिक भी ये लोग का काम नहीं करता, इन लोग को अरबी चाहिए, ये चाहिए। एक बात सुनो, यहाँ पर हेलो ये लोग हेलो, बोल रहे मेरी आवाज आ रही है गाइस? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। एक सेकंड रुक जाए। हाँ वकास भाई, आपको बड़ा शौक है ना अरबी चिल्लाने का। रुको मैं अरबी में पढ़ता हूँ, अरबी पढ़ के उसका वर्ड बाय वर्ड। मुझे ना सुनिए, और मुझे ये लॉजिक जरूर बताइएगा कि अगर किसी को अरबी पढ़नी नहीं आती तो क्या वो तर्जुमा पढ़ के कुरान को समझ सकता है या नहीं समझ सकता? प्लीज ये जरूर मुझे बताइएगा कि आप बार बार कहते हैं ना आपको अरबी आती है, तो अगर किसी को अरबी नहीं आती तो क्या वो तर्जुमा पढ़ के कुरान समझ सकता है, नहीं समझ सकता? भाई अल्लाह ने कुरान अरबी में उतारा। अरबी सुनो, अब तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। अंतुम अशद्दु, क्या आर यू, आगे क्या है? मोर डिफिकल्ट, खल्कन अमी समाउ बनाहा, क्या तर्जुमा लिया? विच इज हार्डर टू क्रिएट, यू आर द स्काई ही बिल्ड। रुको एक मिनट, मैं उर्दू भी खोल लेता हूँ। यार इसमें लिखा है अंतुम अशद्दु खल्कन अमी समा, क्या तुम्हारा पैदा करना मुश्किल है ये आसमान का? बनाहा, जो हमने बनाया। सबर रखे, सुने बात, पूरा बात सुने आप। यहाँ पे तो उर्दू ही नहीं है यारी।
कहाँ पे है उर्दू? शो तो हुआ नहीं है। एक बार रीलोड करिए। क्यों नहीं रहा यार ये? मैंने क्या खोल दिया? अच्छा, मेरी स्क्रीन में वो उर्दू दिख रहा था, मैं तो प्रेजेंट कर रही थी। आप क्या कुरान.com में है? उसमें तो ऐसा मसला नहीं अरे है। वो तर्जुमा कर रहा है ना, दिक्कत क्या है, उनको तर्जुमा करने दो ना। नहीं भाई नहीं, क्यों तुमको कुरान के तर्जुमा पे यकीन नहीं है क्या? या कुरान के जो नहीं तर्जुमान है या मुफस्सरीन है उनसे बेहतर तुम इल्म रखते हो? मुझे ये बताओ। यार क्या अरबी आप पढ़ो, नहीं अल्लाह ने नहीं अरबी में नहीं कुरान उतारा नहीं है। रखते। अरबी अरबी अगर समझने वाला नहीं होता तो ये बात चलती थी। अरबी समझने वाला है ना, उसको मानी समझा रहा है ना। हाँ, ये एतराज कर सकते हो कि भाई इसका भाई मानी भाई ये, लफ्ज का मानी ये नहीं है। नहीं, हमें आपका तर्जुमा नहीं समझना ना। हम जो तर्जुमा यहाँ पे मौजूद है हम वो सर, खोल देंगे। आप बताओ कौन सा खोलना है, हम खोल देंगे। अभी वो तर्जुमा कर रहे हैं ना अरबी में, अगर कुछ उनका तर्जुमा गलत है तो बताओ कि इस तुम जो ये पढ़ रहे हो इसका मानी ये नहीं होता है, बताओ कहाँ से तुमने ये सीखा। चलो अभी करो तर्जुमा चलो निकल गया। 27 पे। 27 से 30 पढ़िए। चलिए जनाब। पढ़िए समीर भाई, पढ़िए। वकास साहब पढ़िए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। नहीं आप पढ़िए भाई, जिसने जिसने इतराज उठाई वही उसको पढ़ना चाहिए ना। उसने ठीक कहा है, कि मुझे पहले ठीक है, एतराज मैं क्लियर कर तर्जुमा लें। पढ़ूंगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। क्या तुम ज्यादा सख्त हो तखलीक में या आसमान इसने बनाया इसको? उठाया इसके बंदे को, फिर दुरुस्त कर दिया इसमें बंदा का है भाई, इसकी भाई का भाई बंदा का है। रफा बुलंदी को। सम कहा, अरे उसको यार तुम बनाया, फसौहा और बराबर कराया। यार तुम बंदा का इसमें चिल्लाने का एकदम से लगते हो वकास। जब तुमको इतना प्रॉब्लम है और तुमको एक वर्ड में ऊंच नीच पसंद नहीं है तो तुम पढ़ लो ना। फिर काहे ड्रामा हाँ, करते हो? अपनी नहीं तरफ से ही पढ़ लीजिए ना। फिर नहीं पढ़ भाई, लो ना। नहीं अगर होगा प्रॉब्लम, हम लोग बात बात इस आगे तरह, बढ़ा हम सकते हैं। लोग मेरे को तुम्हारी जो समीर तरह भाई जो बात प्रॉब्लम इस है, तरह सुनिए नहीं है। सुनिए नहीं वकास नहीं, भाई, जब आप इतिराज आप ये बताओ कि इसके माने ये नहीं है। मशीर इतिराज आलम उठाने बोलो वाला, नहीं बोलो, अच्छा तो मैं बात आप कर रहा अपनी हूँ ना। तरफ से माने बता दीजिए। मैं तो वकास मेरी इतराज बात उतार के सुनिए, मैं बता दूंगी। वकास मेरी नहीं बात जी, सुनिए। जब आपको इतिराज उठाना है, आपको अरबी नहीं आती, तुम्हें कैसे मानो कोई कुरान? तो आपको रुक जाओ आती है ना, आप तंजीला मैम, मेरे रुक को जाओ गलत प्रूफ तंजीला करें। मैम, रुक जाओ तंजीला मैम, रुक जाओ, रुक जाओ तुम भी वकास। ये बार बार अरबी अरबी मत चिल्ला, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो। हम लोग ना तो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, क्योंकि ना हमारी जबान उर्दू है, ना हमें जरूरी है उर्दू पढ़ना, ना हम कभी मदरसे में गए हैं। जितना इल्म हासिल किया है वो अपनी रिसर्च से किया है, अपनी कोशिश से किया है। हम मदरसे में नहीं पढ़े हैं, इतना उर्दू पढ़ रहे हैं वो बड़ी चीज है। पाकिस्तान की जबान ही उर्दू है। आप लोगों के लिए आसान है, मेरे लिए नहीं है। मैं ऐसे ही अटक के पढ़ता हूँ। आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है आप पढ़ लें प्लीज। अनम्यूट करें अपने आप को वकास भाई और पढ़ें। मेरे भाई उर्दू की बात नहीं है, उर्दू भी हटाइए, सिर्फ अरबी छोड़ के पढ़िए। मुश्किल क्या मुश्किल है? लेकिन उसने पढ़िए जो ना। एतराज, उसने जो ये आपको दिख नहीं रहा है क्या? एक एक वर्ड का तर्जुमा अलग अलग लिखा हुआ है। उठाया नहीं मेरा, दिख रहा है। मैं इसको देखो, बुलंद, मुझे मैं देखो, रफा सम बुलंदी कहा, को, और उठाया आगे उसको, फसौहा और बराबर कराया। बराबर नहीं है यहाँ, यहाँ बराबर नहीं है उसकी बुलंदी को। फसौहा उसको बराबर कराया है, इस तरह। देखो और मेरा अगली तर्जुमा आयत में, बोलने का मकसद यही है कि आप लोग ना कुछ वर्ड खा जाते हो और कुछ ऐड कर लेते हो। यहाँ देखिए, मैं यहाँ से पढ़िए। मैं तो यही कह, उठाया, नहीं मैं तो, यहाँ पे क्या लिखा है? इसकी बुलंदी को। दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये
उठाया भाई इसकी जब बुलंदी को। ये रफा उठाया माना है, सम कहा, फसव्वाहा ये बराबर करना है, फसव्वाहा बराबर करना है, फिर दुरुस्त कर अगली दिया आयत- उसको। अरे भाई फसव्वाहा बराबर, उसका यही मतलब है। ठीक है, अगली। वो अग़तश लैलहा, और इसकी रात को तारीकी बनाया, वो अखरज दुहाहा, और इसको दिन को रोशन बनाया, वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, और इसके बाद जमीन को फैलाया। इधर बनाने की बात नहीं हो रही मेरे बहना जी, इधर जमीन बिछाने की बात हो रही। हाँ, इधर बनाने का बात नहीं हो रही है, मुझे मालूम है, आप इसी पॉइंट पे आते हो ना कि इधर हाँ, बनाने, इधर बिछाने का बात हो रही। अगली एक पढ़िए। मिनट, नहीं नहीं, अभी एक मिनट, वल्जिबाला और एक साहा। मिनट। तो अभी इसमें पहले क्या बनाया? आसमान बनाया या जमीन बनाया? क्या बनाया इसमें पहले? लेकिन इधर जो बात हो रही है, आप इधर मेरे को जमीन, सीक्वेंस बताइए भैया, भैया भैया, आप मेरे को सीक्वेंस बताइए। इसमें पहले आसमान बनाया या पहले माउंटेन बनाया, मतलब जमीन बनाया? क्या बनाया पहले चलो इसमें क्या लेकिन था? वल अर्द, सबर करो सबर करो, इधर जो वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, और इसके बाद जमीन को बिछाया। फिर अगली आयत में बिछाया है का? इसकी मैं यही बोल रही हूँ, मैं बिछाया, मैं सीक्वेंस पूछ रही हूँ। उन्होंने बिछाया, गोला में रखा, कुछ भी किया, मैं सीक्वेंस पूछ रही हूँ, पहले आसमान या जमीन? चलो काफी इधर सिंपल सा इधर क्वेश्चन। जमीन है, ठीक है, अभी आप जमीन है। जाइए 41, अभी आप जाइए 41:9 में, कुरान की सबर करो, 41 चैप्टर सबर नंबर सबर 41 सबर करो, सबर वर्स करो, नंबर सबर 9 है। करो। प्लीज प्लीज आप रुकिए, यही आप रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए। मेरा मेरा ये है ना, मेरा पॉइंट है, मुझे एक बार समझाने दीजिए मैं क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर आप आंसर दीजिए, आपको जितना देना है। मेरे को क्वेश्चन तो प्रेजेंट करने दीजिए, मैं क्वेश्चन तो प्रेजेंट कर लूं। 41 का 9 से 11 तक पढ़िए। ठीक है। पढ़िए, स्क्रीन पे है। कुल इन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फी यौमैन, कह दीजिए तुम इस ज़ात से इनकार करते हो और इसके मुकाबिल करार देते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। उधर बिछाने का, इधर नेक्स्ट वर्स, एक मिनट, नेक्स्ट वर्स 10 में जाइए। सबर, इधर खलक़ल अर्द फी यौमैन, उसने जमीन को 2 दिन में बनाया। वतजअलून लहू अंदादा, और उसके साथ 2 मिनट वाली मैगी। नेक्स्ट, और तुम उसके साथ शरीक करते हो। ज़ालिक रब्बुल आलमीन, वही है मखलूक़ात का पालने वाला। फिर अगली आयत में से बनाया, वजअल फीहा रवासिया मिन फौक़िहा, और उसने ज़मीन में इसके ऊपर पहाड़ बनाया। वक़द्दर फीहा अक़वातहा फ़ी 4 अय्याम, और इसमें बरक़ात रख दी, और इसमें 4 दानों में हाजतमंदों की ज़रूरत के बराबर सा खुराक मुकर्रर किया। ये पूरा 4 दिन हो गया ज़मीन। नेक्स्ट। सुम्मा इस्तवा इला समाई वहिय दुखानुन, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जिह हुआ। फ़क़ाल लहा, और उसको कहा, वलिल अर्द, और ज़मीन को, इतिया तौअन औ करहा, दोनों को कहा आ जाओ, ख्वा खुशी से या कराहत से। क़ालता, दोनों ने कहा, आतैना, हम आते हैं, त्वाइईन, बखुशी से। इधर दोनों को कहा, जब बनाना था तो दोनों। नहीं, तो अब बताए ये सीक्वेंस में उन्होंने पहले आसमान को बनाया या जमीन को बनाया? तो यही तो आपकी समझ से बाहर है ना। मीन उधर का वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, उधर जो जमीन की बात हो रही है, उधर बिछाने का बात हो रही है, बनाने का नहीं। इधर बनाने की बात हो रही है। उधर वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा, उधर का खलक अली का होता ना, खलक माने पैदाइश, तो तब आपका जवाब होता, लेकिन उधर दहाहा लिखा है। तो इसमें ऐसा क्यों समझ लिया आपने कि बनाना और बिछाना 2 अलग-अलग चीजें हैं? अगर वो बनाएंगे तभी ना वो बिछा रहे, वो बिना बनाए या बिना बिछाए कैसे? दोनों चीज तो एक साथ होगा ना। वो एक तो टाइम देखो, मैं इसमें कुरान करीम में बहुत सी मैं जगह काफी सिंपल में पूछ रही हूँ कि ये वाले वर्ड्स अभी आपने जो पढ़ा 41 का 9 to 11, इसमें उन्होंने पहले अर्थ बनाया या पहले स्काई बनाया, सितारा बनाया, क्या बनाया? अभी ऐसा करो, ये 11 नंबर में, सबर करो, 11 नंबर में क्या थे? 11 नंबर में पहले क्या जमीन आया ना? हाँ 10 में 41 10 में पहले जमीन के बाद आसमान आया ना, फिर दोनों को हुक्म हुआ ना। लेकिन उधर जो कह रहे सूरत नाज़िआत में, वल अर्द बाद ज़ालिक दहाहा,
ادھر بچھانے کی بات ہو رہی، بنانے کی نہیں ہو رہی میرے بھائی. پھر اگلی آیات میں اس میں کہا جو سورۃ نازعات میں آیات ہے لیکن اس میں اس چارہ آیت نکالنے میں کی. انہوں نے ارتھ کو ایک دم لاسٹ میں بچھایا، پہلے آسمان بنا لیا، اور اس آیت میں انہوں نے پہلے ارتھ میں ماؤنٹینز بنایا، یہ بنایا، پھر وہ آسمان کی طرف گئے. آپ کدھر ہے سمجھ رہے کدھر ہیں ہے کیا اس میں کہنا؟ کدھر ہے اس میں کدھر ہے کہ پہلے آسمان بنا ہے؟ اس میں کدھر ہے؟ اس اس میں میں زمین بنانا پہلے ہے ادھر. ماؤنٹین بنایا، 41 میں پہلے انہوں نے ارتھ کدھر بنایا، بھی نہیں ہے، ماؤنٹین بنایا. کدھر بھی نہیں ہے، یہ نہیں، اپنے آپ مطلب پھر سے سے سمجھ رہے ہیں. 41:10 میں جائیے، آپ دیکھو 41:10 میرے میں بات جائیے. سنو، میرے بات سنو. ادھر زمین بنایا اور زمین میں جو تھا رزق یہ سب رکھ دیا. صبر کرو، مجھے سمجھانے دیا. ادھر زمین پہلے بنایا، پھر آسمان کی طرف متوجہ، وہ ایک دخان تھا، پھر دونوں کو کہا اس طرح بات. لیکن ادھر جو بات ہو رہی ہے زمین کی، ادھر بچانے کی بات ہو رہی ہے، بنانے کا نہیں ہو رہی ہے. وکاس بھائی یہ بتائیں بچھایا کس چیز کو جاتا ہے؟ بھئی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم نے کتنے انگلوں سے نہیں وکاس زمین بھائی کا سنیں وکاس بھائی، قرآن سے ہٹ کے میں پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے پاس چیز ہو اس کو آپ بچھا رہے ہیں، کیا وہ مکمل ہوگی؟ بچھایا، آپ کو بچھانے کا مطلب معلوم نہیں ہے؟ بچھانا کس کو بولتے ہیں؟ نہیں بچھانے والی چیز جو ہے وہ نامکمل ہے یا مکمل ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے نا وہ کوئی چیز ہے. ہاں جی. مطلب وہ چیز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ دنیا تھی، آسمان تھا، کیا تھا جو بچھا رہا تھا؟ اچھا پھر سورت چلتے ہیں سورت نازعات میں اسی آیت نہیں میں. وکاس بھائی رکے ادھر ہی رکے، مجھے صرف لاجک سے بتائیں وہ کیا چیز تھی جس کو بچھا. یا میں کیا آپ کو لوجک سے بتاؤں؟ میں قرآن کریم سے آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں دیکھیں بچھایا آپ نہیں کس کے لیے سنیں بچھایا. آپ قرآن کے بغیر اندھے ہیں. یار بے جو شک قرآن کریم اندھے نے ہیں، کہا. لاجک مت لگاؤ، بول رہے ہیں نا، ارے دلیل بھائی دے رہے ہیں نا. وکاس بھائی سے بات کر رہا ہوں، ان سے کرنے دو. وکاس بھائی ہاں میں تو آپ وہ سے پوچھ دلیل رہا دے ہوں، رہے ہیں، دلیل لے لو نا. ارے یار تھوڑا لاجک پہ بھی بات کر لیا کرو. نہیں وکاس بھائی لاجک بچھا سے اپنا قرآن کو لاجک نہیں سمجھا جا سکتا. قرآن کریم سے سامنے لوجک نہیں چلتے ہیں. ادھر بتائے والارض بعد ذلك دحاها، اگر ادھر خلق ہوتا نا خلقہ تو پھر وہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ادھر دحاها لکھا ہے بچایا. بچایا کس کے کیا لیے بچایا؟ بچھایا؟ نہیں کیا بچھایا؟ یہ زمین کو پھر زمین اس کے کو. بعد زمین کس صبر. نہیں سنیں زمین کس شکل میں تھی اس ٹائم؟ زمین کی تو کئی مراحل بتایا اللہ تعالیٰ نے. نہیں آپ بتا دینا آپ نے کون سی شکل سمجھی ہوئی ہے اس کی. بھائی اب میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ زمین یار بچایا کس بات کے سے لیے؟ بھی آپ صبر کرو. بتا سکتے ہیں، خالی زمین تھی، صبر پہاڑ تھے، صبر درخت تھے، کیا تھے؟ کس کے لیے بچایا بھی آگے آتا ہے نا. کس کے لیے بچایا؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس نے زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا. جو ابھی ہم لوگ کہتے ہیں یہ پانی اور چارہ ہر چیز کا، یہی تو وہ بچانے کی بات ہو رہی ہے ادھر. نہیں سنیں مطلب بچھی ہوئی پوری زمین میں سے انہوں نے پھر اناج وغیرہ اگایا. صحیح ہے ایسے ہی ہے؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے بھائی، جس طرح آپ سمجھ لی. نہیں آپ کا لاجک کیا کہتا ہے اس پہ؟ میں اگر ابھی قرآن کریم سے 10 آیات دکھا دیتا ہوں جو زمین کے بارے میں بتایا. صبر کرو مجھے بتانے دو. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِجَاجًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَدًّا. مجھے بتائیے بھائی، بتائیے مجھے، اس میں سب زمین کی اینگلوں کی بات ہو رہی ہے. سر آپ نے عربی پڑھی، آپ نے سمجھ لیا، وہی بات ہمیں سمجھا دیں کہ جو بچھایا تھا وہ کیا تھا؟ زمین تھا. کس شکل میں تھا؟ میں نے ابھی بھائی 10 آیات پیش کرائے، کوئی ایک نہیں اینگل ڈھونڈ کر. آپ سنیں آپ نے آیات پڑھی، آپ نے جو سمجھا وہ بتا دیں ہمیں، وہ کس شکل میں تھی؟ یا جس شکل میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا اس سے ماءها ومرعاها، اس نے پانی اور اس سے چارہ نکالا. یہی جو سورۃ نازعات میں جو بات ہو رہی ہے. یار آپ بچھانا اور دنیا کو الگ الگ کہہ رہے ہیں. آپ بتائیں وہ دنیا نہیں تھی، صرف بچھایا تھا، کیا مطلب تھا کہ وہ دنیا پوری نہیں تھی؟ تو نہیں یار تھی اس تو طرح کیا بات تھی اور کیسے تھی؟ آپ مجھے ایک لاجک سے بتائیں. اگر آپ کا لاجک نہیں چلتا تو آپ یوں سمجھ لیں آپ ایک اندھے بلیور ہو. نہیں اندلی اور نہیں. مگر میں آپ سے پوچھو جی کہ بھئی قرآن کریم نے کئی اینگل بتایا. مجھے ایک اینگل
बता दीजिए, आप मुझे नहीं बता सकते हो, क्योंकि ये तो उसको मालूम है जिसने बनाया। तो मतलब आपको नहीं पता? मुझे तो जितना कुरान करीम ने सिखाया उतना ही मालूम है, लेकिन जो बेहनजी बात कर रहा था वो उसको लगता था कि इधर जमीन बनाया, लेकिन इधर जमीन की बात बनाने को नहीं हो रही है, इधर बिछाने की बात हो रही है, लेकिन सूरत फुस्सिलत में जो बताया उधर बनाने का बात हो रही है। नहीं, किसी चीज को अगर लगा रहा है या दरख्तों को या किसी भी चीज को, तो वो कहाँ लगा रहा है, आसमान में या नहीं जमीन सर, पे? वो भी छोड़िए, जमीन के बाद भी वही आयत में 32 में ही है कि एंड देन ही माउंटेन वाज सेट फर्मली, तो वो तो एकदम एंड में हो रहा है। जबकि मेरा क्वेश्चन वापस से वही है कि पहले माउंटेन्स बनाया या पहले स्टार्स बनाया, क्योंकि इवन वो वाले दोनों आयत में, एक आयत में पहले बोल रहे कि माउंटेन्स पहले बनाया जो 41 में था, और 79 32 में एकदम एंड में है माउंटेन्स, एकदम एंड में अर्थ बना लिया, उधर से पानी निकाल दिया, घास उगा लिया, उसके बाद उन्होंने माउंटेन लगाया। देखो मैंने अभी 10 आयत हाँ आपके तो सामने सही तो है, गलत क्या है उसमें? हाँ, तो जब मैंने 10 उसमें आयत कोट वो किया। एक मिनट, जब उसमें वो बोल रहे कि माउंटेन्स एकदम लास्ट में लगाया, मैं मान ली, लेकिन जब मैं 41 पढ़ रही हूँ, 41 के 9 में पढ़ रही हूँ, उसमें वो बोल रहे कि उन्होंने माउंटेन्स पहले बनाया, उसके बाद सेकंड में उन्होंने आसमान बनाया, तो अब मैं किस में विश्वास सबर करो, सबर करो, मैं बता देता हूँ। सूरत फुस्सिलत में जो उधर बनाने का बात हो रही है, लेकिन इधर ये जमीन बिछाने का और इससे जो माँ है और जो चारा है उसी की बात हो रही है। आपकी समझ में क्यों नहीं आता है? उसके उधर बाद बनाने के उसके बाद बाद वाला वर्ड चाहिए, उसके बाद में वो बोलते हैं ना कि माउंटेन्स, उसके बाद उन्होंने माउंटेन्स लगाया। आप मानते हैं कि नहीं? आप 79 के 32 पढ़े कि नहीं? अब आप मुझे ऐसा पता नहीं क्या क्या कोई पहाड़ी पढ़ा रहे भाई। सूरत का नाम लीजिए और आयत का नाम लीजिए। मैं वापस से बोल रही हूँ, कुरान का चैप्टर नंबर 79 वर्स नंबर 32 में एकदम आखिर में, वहां पर उन्होंने माउंटेन्स लगाया। ठीक है, मैंने मान लिया उन्होंने एकदम आखिर में माउंटेन्स लगाया। फिर जब मैं 41 के 9 में पढ़ती हूँ, तब उसमें पता चलता है कि वहां उन्होंने पहले माउंटेन्स बनाया, पहले अच्छा, अर्थ सबर सरफेस सबर बनाया, सबर कर उसके ये आप बाद पहाड़ की वो बात। आसमान में टर्न सबर होते हैं, जो तब तक स्मोक सबर है, करो, वो हेवन सबर वो करो, स्मोक था, मुझे ये तब वो स्मोक को सबर जाकर बोलते हैं कि कम इनटू, तब वो जाकर सबर आसमान करो। बनाते हैं। आप सुनिए वकास भाई, सुनिए। आप पहाड़ों की बात कर रही है ना? वकास भाई सुनिए सुनिए, एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है और अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और हमारे व्यूवर्स भी जो है ना अब चाहते हैं कि स्ट्रीम बंद कर दिया जाए। ऑलरेडी 6 आवर की हमारी स्ट्रीम हो गई है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम जो है ना अपनी, वो इसी या इसी से रिलेटेड टॉपिक पर रखते हैं वकास भाई। तो आप आइएगा तो फिर इस पे हम बात करेंगे ज़रूर, क्या कहते हैं? इस पे ही रखे, जमीनों आसमान पे। आसमान में क्या क्या चीज से बना है, सातवां आसमान में क्या क्या धातु इस्तेमाल हुए, या जमीन में क्या हुए, वो वकास साहब लेके आएंगे। मेरे को कोई नहीं, फर्क मैं नहीं इसे पड़ता उससे, ये मुझे बस एक ही आंसर चाहिए कि उन्होंने पहले चांद सितारा बनाया, आसमान बनाया, या पहले उन्होंने माउंटेन बनाया, बस। ये तो मेरा इन्होंने क्वेश्चन मान काफी लिया सिंपल है तंजीला जी, ये इन्होंने मान लिया है। लेकिन असल में जैसे वकास भाई आप कह रहे हैं ना, इसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है आप लोगों की एक्चुअली सोच पे भी, कि नहीं, इसमें आपकी समझ की फर्क है ना, इसमें कुछ नहीं है। पहाड़ बाद में ही बने हैं, पहाड़ पहले नहीं बने हैं। पक्का पहाड़ बाद में बने तो 41 गलत है, तो चैप्टर नंबर 41 कुछ गलत नहीं है, आपके समझ में, दिमाग में गलत है, आपका लॉजिक गलत। यार जब सब्र मैं करो यार। कह रहा हूँ कि समीर साहब भाई, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं कब से म्यूट लगा के बैठा हूँ, पर आप 1 मिनट नहीं दे सकते। प्रॉब्लम कितनी बड़ी देखो, 1 मिनट आप लोग सब्र से नहीं सुन सकते हमें। हम कितना देर आपको सुनते हैं? नहीं, आप बंद कर रहे हैं ना, इसलिए बोल दिया। नहीं तो अभी मैं इतनी जल्दी सुना, एकदम थोड़ा ना बटन दबा के एंड कर दूंगा यार। आप लोगों से हाय हेलो बाय बाय तो करूंगा ना। मेरा पॉइंट सुन लो भाई मेरे। मैं ये कह रहा था आपसे कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब जमीन को चपटी वाले जब टॉपिक पे हम बात करते हैं कि जमीन चपटी है, ऐसा अल्लाह कहता है, तो वहां पे बिछोना, फैलाना और आपका पालना, ये सब चीजें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ जमीन के बनाने के लिए मिसाल दी जाती है कि ये सारे के सारी मिसालें जमीन के बनाने के लिए है।
नहीं चपटी, ये आपके समझ में, एक सेकंड थोड़ा सुन ले। ये चपटी वाला जो बात बोले ना, ये चपटी कुरान। रुक जाओ, मेरे बात कंप्लीट नहीं हुई है मशीर आलम। ये प्रॉब्लम है आप लोगों का, आप एक सेकंड नहीं आराम से सुन सकते। मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज अनम्यूट मत करना अपने आप को जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो जाए, फिर रख लेना आप अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि जब हम ये क्लेम करते हैं कि ज़मीन चपटी है क्या, कुरान ऐसा कहता है, तो वकास भाई आप सभी मोमिन हजरात ये साबित करने पे लग जाते हैं कि ज़मीन का फैलाना, ज़मीन का बनाना, ज़मीन का पालना कहना, ये सब चीज़ें सिर्फ ज़मीन को बनाने से मुराद है। लेकिन आज तंजीला मैम ने जब ये बोल दिया कि यहाँ पे सीक्वेंस आगे पीछे है, कहीं पे ज़मीन पहले बनाई जा रही है तो कहीं पे आसमान पहले बनाया जा रहा है, तो आपने वकास भाई 1 मिनट नहीं लगाया ये बोलने में कि वहाँ ज़मीन को बनाया जा रहा है और यहाँ फैलाया जा रहा है। यानी आपके हिसाब से ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं कि ज़मीन पहले बना ली गई, अब उसको फैलाया जा रहा है, तो अब इस पे जो है ना मुझे उस टॉपिक का जवाब आप दें, मशीर साहब आप भी और वकास साहब आप भी, कि जब ज़मीन को फैलाया जा रहा है इसका मतलब ज़मीन चपटी है कुरान के हिसाब से, तभी तो उसको फैलाया जा रहा है बनाने के बाद। जैसे कि कोई बिस्तर बनाया जाता है ना, तो इसको फैलाया जाता है। अब इस पे आप बताएं मुझे, क्या ज़मीन चपटी है जो उसको फैलाया गया? बोले मशीर फैलाने साहब। से मुराद चपटी नहीं है। अच्छा, फैलाने से मुराद क्या है सर? वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, शतुरमुर्ग का अंडा आप कभी देखे? शतुरमुर्ग, ये फैलाने से अंडा कहाँ से निकला है? मैं बोल रहा हूँ ना, उसका आकार बोल रहा हूँ, आकार बोल रहा हूँ। शतुरमुर्ग के अंडे को अभी कभी आपने देखा है? हाँ देखा है, आगे बढ़िए। वो चपटी भी होती है और गोल भी होती है। एक बात बताना मशीर साहब, हाँ, जाकिर नाइक के चेले हो ना तुम? जाकिर नायक जैसे बहुत है। नहीं, ये एक्चुअली जो थ्योरी तुम बता रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ जाकिर नाइक की है, क्योंकि उसने ही वहां मुराद जो है ना उस वर्ड से वो शतुरमुर्ग का अंडा लिया है। पर आपको पता है कि अगर जमीन शतुरमुर्ग के अंडे जैसी होती तो वो कैसी दिखती? यू हैव एनी आइडिया? तुमने यहाँ बैठ नहीं, करके हमारी स्ट्रीम पे ना ये बॉन्ग भी तो मार दी, एक सेकंड, एक आपको सेकंड। आइडिया नहीं आज कि तक किसी साइंटिस्ट ने, किसी इतने बड़े साइंसदान हो गए, किसी ने पता लगाया कि दुनिया है कितनी बड़ी? यहाँ बड़ी की बात नहीं हो रही है, यहाँ उसकी नहीं, शेप की बात हो रही है, बड़ी की आप नहीं। हम देखो दुनिया में रह रहे हैं, साइंस बहुत आगे चला समीर, गया, लेकिन ये आप बताओ कि किसी ने पता लगाया कि हाँ कितनी बड़ी है दुनिया? ये आज तक कोई प्रूफ कर सका? एग्जैक्टली, दुनिया का पूरा डायमीटर आज मौजूद है। हाँ है तो नहीं है सर, सर्कमफ्रेंस से दुनिया diameter के है। चौथे यार, हिस्से में ही दुनिया समीर, अभी है ना इंसान बस रहे हैं। भाई ये क्या रुको क्या यार, है? क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं है? दुनिया यार इतनी बड़ी नहीं आपको है। सुनो आलम भाई, आपको जीपीएस नाम की किसी चीज का पता है? क्या जीपीएस? जीपीएस क्या होता है सर? सर अपने को आपको पता है जीपीएस नहीं जीपीएस क्या पता होता है। है? बताएंगे तब तो पता चलेगा ना। सर कुरान में है जीपीएस आप क्या है? पढ़िए। वो कुरान में कुरान लिखा में हुआ है। कुरान में मशीर साहब के मुताबिक ये एक है कि अगर कुरान में ये नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है, उसका डायमीटर्स, उसका माप जो है वो कुरान में दर्ज नहीं है, तो फिर दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि जो चीज कुरान में नहीं वो कहीं नहीं। तो लीजिए बेशक नहीं है। दुनिया का डायमीटर समझिए या अल्लाह दिखाएगा, बेशक आपका भी शक हो जाएगा। समीर भाई ये वही बात है, बच्चे से कोई सवाल पूछे ना तो अगर उसको ना आता हो तो बोलता है ये मेरे किताब में नहीं लिखा हो। दिख रहा है नहीं, आप आप लोग सेंट पे जाइए, क्या मुश्किल है? मेरे यहाँ तो नहीं दिख रहा है, बड़ा करना पड़ेगा। सर बड़ा कीजिए ना। अरे कितना बड़ा करूं, और ये अप डाउन क्यों नहीं हो रहा है? कल उस दिन तो हो गया था, अच्छा, खुल गया था। आपको क्या अर्थ का डायमीटर जानना है?
हाँ मैंने खोला तो था ना इस पे। बस सर्च कीजिए अर्थ का डायमीटर, आराम से आ जाता है 12,742 किलोमीटर। अब 42 का हिंदी नहीं आता है, सॉरी, बट 42 होता है ना 42 का। 12,742 किलोमीटर। ये बैग क्यों नहीं जा रहा है यार? और ना ही सिर्फ अर्थ का, हम लोग को सन का भी पता है, मून का भी पता है, मार्स का भी पता है। ये मशीर साहब को नहीं पता ना, क्योंकि कुरान ने नहीं बताया। नहीं, कुरान करीम ने बताया, लेकिन आपका साइंस अभी तक उधर नहीं पहुंचा ना। कुरान में बताया है। देखो कुरान करीम ने ज़मीन के बारे में कितना मराहिल बताया मुझे। मैंने आप ये 10 आयत कोट कराया, उसने सिर्फ एक चप्टी को मालूम कराया। क्या? मैं माउंटेन्स में थी, मैंने कभी चपटा बोला ही नहीं, मेरा वो पॉइंट था ही नहीं। देखो उधर आपकी गलती यही हो रही कि आपको अरबी अच्छा मालूम ठीक नहीं है, है। आप कुरान के हिसाब से बताइए अर्थ कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, कुरान ने भाई बताया यही है? सवाल, देखो जी, हमसे क़यामत के दिन यही सवाल नहीं पूछेगा कि मैंने इसलिए आपको भेजा। अल्लाह ने सर कहा कुरान एग्जाम के करीम में टाइम कि में इसमें पूछता है, गौर फिक्र सर करो, एग्जाम लेकिन के टाइम रब्बना में पूछा गया, मैंने एग्जाम के टाइम साइंस पढ़ा, मैंने बता दिया आंसर, तो मैंने आपको भी आपने अभी अच्छा बता दिया चलो ठीक, आप चलो 12,700। ठीक, चलो ठीक है, मैं अभी आपको चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। कुरान करीम में जो ज़मीन के बारे में बताया, मुझे उसका एक एक जवाब दीजिए। मैं अरबी दिख रहा पढ़ है लेता हूँ। स्क्रीन पे आपको ये एक मिनट वकास साहब, एक मिनट, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आप पढ़ लीजिए, ये अर्थ का डायमीटर से। मुझे नहीं दिख रहा है मेरा मोबाइल, लेकिन मैं नहीं, उसको इनको दिख रहा अभी है कुरान मशीर साहब को, नहीं मशीर दिख भी रहा है तो ये ज्यादा ही ये हो गया है, लैंग्वेज है ना, फट गया है ऐसा लगता है। नहीं, वो ठीक तो आपका दिख ना रहा है। इंटरनेट थोड़ा महंगे वाला है ना जनाब, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आपने जिब्राइल से रिक्वेस्ट 12,742। करवाया होगा। यहाँ पे लिखा है, ever went from one side of the 12,742। earth to the others, our planet is truly big among the ये फलाना फलाना फलाना, यहाँ पे लिखा हुआ है 12,742, 12.742 किलोमीटर्स, ये अर्थ का डायामीटर है, और आप कह रहे हो नहीं पता साइज। इसके अलावा सुनो, सिर्फ अर्थ का नहीं, मरकरी का, वीनस का, मार्स का, जुपिटर का, सैटर्न का, नेपच्यून का, जिसका चाहिए तुमको उसको खोल के बताता हूँ। अरे सर अभी तो हम लोग को दूर दूर जो प्लैनेट है उन लोग का भी नहीं पता है नहीं, अभी। कोई साइंस नहीं कहता कि मैं दुनिया के आखिर तक पहुंच गया। लो सन का भी देख लो आप सन का भी देख लो यहीं पे ना, सन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप कह रहे हो दुनिया का आखिर आप बोलना ये क्या है सन चाहते हैं? का, व्हाट डू यू मीन बाय सन का दुनिया का डायमीटर आखिर? ये है। दुनिया के आखिर में जाएंगे तब तो दुनिया के आखिर पता चलेगा ना दुनिया दुनिया का है आखिर कितनी का बड़ी। मतलब क्या? मशीर साहब नजर आ रहा है, सन का डायमीटर जो है 13,90,000 है, और आप कह रहे हो यार नहीं पता है, मतलब कुरान नहीं कुछ नहीं, कुछ अगर सन का कुरान मैं को नहीं नहीं बोल रहा हूँ, पता सन है का तो सबको मालूम तो है। दुनिया में किसी सन को भी नहीं पता है सन का क्या? सबको सन मालूम पे है, मैंने सन पे मैंने नहीं आप कहाँ पे सवाल रहते किया। हैं? आप जो अर्थ मैंने पे रहते हैं आपको वो अर्थ की अर्थ पे लैंग्वेज किया था, पता है? अर्थ का नहीं है, आलम भाई अर्थ का भाई नहीं है, आपको पहले पूरी दिखाया अर्थ ना, का। तुम आंखों पे भाई चश्मा ये वश्मा लगा के जानबूझ बैठे के हो या अंधा काली होता पट्टी बांध है। के बैठे नहीं हो। नहीं, सुने ये सुने ये आलम वो भाई, बता रहा है जहाँ पे आलम दुनिया भाई, बसी हुई है, जहाँ दुनिया नहीं बसी है उसका नहीं बता रहा है ये। और मेरे ये आलम जितने भाई, भाई जहाँ दुनिया नहीं जितने बसी, एक मिनट, मार्स में दुनिया बसी है? आलम भाई कौन सी पी रखी है ये तो बता दो। जो भी फूक रहा है ना ये मेरे को भी जो तुम पास नहीं कर दे भाई। पिए हो। बस आप जो भी रहने फूक दो, रहे यहाँ पे समीर भाई मुझे इनको रहने दे। नहीं कोई है यार लेकिन सच हाई रह, अर्थ तंदूरी में हाई है डोज है, हाई डोज है कुछ भी, और बहुत मतलब अच्छा है। तुम हमको गलत साबित करने के लिए, चलो कुरान में तो तुम्हारे हमारे इख्तिलाफात है, समझ में आता है कि भाई कुरान में तो है, तो तुमने उसको बचाने के लिए कुछ भी बोंगी मारनी है। मतलब अब साइंस में भी भाई साहब आपने मतलब हमको बिल्कुल बेवकूफ और आउट ऑफ लाइन करना है, आप साइंस चाहे जानते आपने हैं, कितनी इलॉजिकल वाली आपको साइंस का पूरा इल्म है। आपको I am a student of science and listen to me carefully. I am a student of PhD also in science, अच्छा, biotechnology. तो मुझसे साइंस की बात मत करना, ये अरबी वाली बोंगी नहीं चलेगी साइंस में, क्या क्या तुमको अरबी आती है, मुझे साइंस बहुत अच्छी आती है।
समीर भाई किसी होश तो में जो मुझे बंदा मुझे उससे साइंस नहीं आती, अब मैं किसी साइंस वाले से नहीं पूछ के आती है, बताऊंगा। फिर भी तुम एक पीएचडी स्टूडेंट को सिखा रहे हो साइंस। नहीं समीर साइंस भाई मुझे नहीं एक आती, सेकंड, मैं तो अरबी एक को मिनट, जानता हूँ, अली उर्दू सर, को जानता हूँ। एक मिनट रुकिए, आलम भाई बोलिए अली सर। समीर भाई हजूर पाक का फरमान है कि किसी जाहिल से बहस नहीं करनी चाहिए। नहीं अरे ऐसा नहीं यार, बोले, देखो हमारे माशाल्लाह। नहीं, ईमान अगर में ऐसा होता मानता हम लोग, ऐसा मानते तो तुम लोग से इतनी देर बात करते क्या? नहीं कोई बात नहीं है। देखो कोई भी गलत चीज एक दूसरे को ना बोले, हमारे गेस्ट हैं आप, हमारे लिए बाईस एहतराम है, आप सब लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं हम। बट यार कम से कम दलील ऐसी दिया करो मशीर साहब, जो सामने वाला सुन के अपना सर नहीं पीटे। नहीं सर नहीं पीटे, मैंने एक सवाल पूछा, अब बताए, मैं उसको तहकीक करूंगा, क्योंकि मैं साइंस तो जानता नहीं। मैं अब साइंस से अब इसको ये पता अलजेब्रा करूंगा जो साहब हमारे कह दिखाएगा। रहे हैं अर्थ इज फ्लैट लाइक मोमिन ब्रेड। नहीं ऐसा मत बोले, अर्थ इज अर्थ इज फ्लैट फ्लैट लाइक लाइक अ ब्रेड ब्रेड। पीस। नहीं अभी नई डेफिनेशन आ गई है जाकिर नाइक के एक्सप्लेनेशन के बाद। वो कहते हैं कि शतुरमुर्ग के अंडे जैसी है वो इमेज। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम भी कम है, मैं निकाला नहीं हूँ। मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में जरूर दिखाऊंगा कि एक्चुअली शतुरमुर्ग का अंडा कैसा होता है, और अगर वैसी हमारी शतुरमुर्ग अर्थ होती तो वो कैसे। क्या आपने होता है? मुर्गी का अंडा देखा होगा ना, सेम होता है, बस साइज में बड़ा होता है। तो नहीं क्या हमारी मुर्गी अर्थ, अलग है ना, शतुरमुर्ग क्या होता है? मुर्गी का इंग्लिश। गोल होता है। where does Quran says to understand Quran one must know ऑस्ट्रिच। Arabic, because Quran also doesn't say one must know Arabic कोई to हेल्प कर understand दे Quran। मुझे। डेफिनेटली तसज्जुद, डेफिनेटली। पता है प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली कुरान हम लोगों के लिए था ही नहीं, ना कुरान की तालीम हम लोगों के लिए थी, ये अरबी लोगों के लिए थी, हम लोगों के अज़मी। ना तो हमारे लिए कुरान नाजिल हुआ है, और ना कुरान की जो है ना तालीम हमारे लिए, ये तो जबरदस्ती हम पे थोपा गया है। क्योंकि कुरान खुद कहता है कुरान के अंदर कि हमने इसको तुम्हारी जबान में नाजिल किया ताकि तुम उसको समझ सको। अब वो कौन सी जबान में है? अरबी में। और अरबी जबान किसकी ये है? कहाँ लिखा है अरबी। भाई, ये कहाँ लिखा? सबर करो, अल्लाह मैं ताला आपको कुरान में रेफरेंस लिखा है, या मैं सबर रेफरेंस करो, दे या दूंगा आपको। इस अभी सर कुरान अभी वो में अल्लाह अभी चैट लिखा का है, आंसर दे रहे हैं, सर वो चैट का ये आंसर दे रहे हैं, वो आपको आंसर नहीं दे रहे, वो जी, चैट का आंसर दे रहे। कौन सी चैट का आंसर दे रहे हैं आप? सर नहीं वकास भाई से यार मैं पूछना था, वो कह रहे थे कब्र में हिसाब होगा कि दुनिया कितने किलोमीटर है। तो वकास भाई से पूछना चाहूंगा, वकास भाई आप, मैंने सुना है कि आप दुकान चलाते हैं, आप दुकान पे भी हिसाब किताब करते होंगे, क्या कस्टमर को आप ऐसे बोलते हैं कि जो आपका ये इतने प्रोडक्ट है इनका हिसाब जो है ना आप कब्र में देना? ये देखो अलजेब्रा साहब, ये वाली लैंग्वेज वो समझने के लिए तो वो मुझे जो है ना मोहम्मद साहब को बुलाना पड़ेगा। आई एम सॉरी। नहीं, इस तरह बात मत करो, वो दुनिया अलग है, हमने नहीं देखा, हमारा ईमान है गैब पर। तो जब आप ये इस जो दुनिया फरिश्ते में, तो का हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं कि दुनिया का जो साइज है और दुनिया का जो लेंथ है वो कितना किलोमीटर है, तो आप वहां पे अपना कुरान क्यों घुसा रहे हैं? नहीं, मैं तो साइंस की बात करता ही नहीं हूँ, आप जो कहने दीजिए मुझे मानना है, लेकिन मैं अगर कुरान की बात करेगा, वो जिसको एक हर्फ भी नहीं आता है कुरान करीम का, और वो कुरान करीम पर उंगलियां उठाते हैं, तब हम बात करेंगे। तो यार हम दुनिया की बात कर रहे थे, हम कुरान की तो नहीं कर रहे थे। नहीं, आप, मैंने तो कब कहा कि भाई आपने कहा मैंने नहीं माना, आप जो कहना है कही, लेकिन जब कुरान करीम पर उंगली उठेगी तब बात करना पड़ेगा हमको। नहीं अभी इतना बताने के बाद भी बोल रहे हैं कि एक तरफ लिखा है जमीन पहले बनी, एक तरफ आसमान पहले बनी, इस कहाँ लिखा है? उसमें जो दिखाए हो उसमें कहाँ है वो कि पहले आसमान? कहीं बोल रहा हो अल्लाह के पहले जमीन बनाया, या कहीं दिखा रहा हो कि पहले अच्छा आसमान छोड़िए, बनाया? चलिए मस्फिर साहब, मैंने कह दिया ना उस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। अभी एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं भी स्ट्रीम बंद करने लगा हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों का, वकास भाई एंड मशीर भाई, के आप लोग आए और इतना टाइम दिया। कम से कम आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं। जो उलमाए दीन हैं वो तो बेचारे कोशिश भी नहीं करते कि हमारे सवालों के जवाब दें या उसका सामना ही कर नहीं, लें। वो लोग जवाब इसलिए नहीं देते कि आप लोग वो बात ही नहीं कर सकते, वो लोग आप लोग उसके साथ सामने। नहीं जब अब देखिए ये तो वही बात हो गई ना वकास भाई, कि आप सवाल ऐसे करें जो हमें पसंद आए, और अगर हमें पसंद नहीं आएंगे तो आपके सवाल वाहियात नहीं हैं। है, हम ऐसा है ना, ऐसा करे आप एक अरबी जानने वाले को रख ले जो अरबी ग्रामर जानता हो, यार तो नहीं है बेहतर अपने होगा बात करने में। ब्रदर, अपने को नहीं है लंगड़ी लूली जबान सीखने की जरूरत।
नहीं, आप मत तो सीखो फिर ना, किसी भाई जानकार को सबर रख लो करो। आप। वो अरे जो अभी जनाब जो मैं एक क्या लड़के ने कह सवाल रहा हूँ, उठाया, अरबी नहीं नहीं सवाल नहीं, सुने सुने जनरली सुने यूनिक सुने जबान है। नहीं नहीं, मैं जरा आलम भाई को बताना चाहता हूँ। आलम भाई आपको अरबी आती है? मुझे अरबी आती है ना। सारी आती है? माशाअल्लाह। अंत नहीं, अंत मालूम अरबी। सारी कलाम किसी को कलाम या नहीं शेख, आती। कलाम कलाम बशीर आलम कलाम, कल्लिम कल्लिम या हबीबी, हाँ, अंत मालूम अरबी। मालूम मालूम। वल्ला किफ अना ला मालूम? मालूम ज्यादा। हाँ, आइबा अरबी अरबी पे बात करेंगे कल। नहीं नहीं, इतना मैंने या मैंने इतना अरबी शुक्रिया अरबी में मशीर एक साहब कि डिबेट हमको करते क्या हैं। आता नहीं है कल और हम क्या एक नहीं। डिबेट ही अरबी पे करते हैं। नहीं नहीं, सुने सुने आलम यार भाई, तुमने हर आपको चीज पे डिबेट करनी है, पर तुमने ना इस्लाम पे डिबेट नहीं करनी, और ना नहीं, तुम कर सकते। इस्लाम पे डिबेट करने के लिए बोल तो रहा हूँ, आप किसी अरबी जानने वाले को रखो, जिसको सही जानकारी हो अरबी का, जो हर इस्लाम पे लफ्ज बात का करने मानी के जानता लिए हो, अरबी की जिसने जरूरत नहीं है। ये जो जिसको अरबी अरबी सुनिए सुनिए, ये जो अरबी सर्फ अरबी न का हो की तरीका तमीज हो, जिसने पढ़ा हो, उसको ऐसे लोगों को लाया। समीर तो भाई यार मैं अगर इनसे बात तुम्हारा ये करना लॉजिक चाहूंगा। हम मान भी लेना एक बार कि जिसको अरबी नहीं आती वो इस्लाम पे सवाल नहीं पूछे, तो मैं कहता हूँ फिर जिसको अरबी नहीं आती वो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करे। क्यों फॉलो करे फिर बिना जाने? नहीं, फॉलो कर अल्लाह सकते हो, अकबर, हुज्जत नहीं कर मैं बच सकते। गई, नहीं नहीं, अल्लाह जब आलम मुझे भाई, अकबर, मैं बच मालूम गई। नहीं आलम है भाई, कि आलम कुरान में भाई एक क्या सेकंड। लिखा है, अरबी आई डोंट नो, सो व्हेन देन व्हाई आई विल फॉलो। क्यों फॉलो करूं फिर मैं उसको जब एग्जैक्टली, मुझे मैं पता बच ही नहीं गई। है। नहीं, मैं इनसे कहना चाहूंगा आलम भाई, देखें, अगर इस्लाम को जानने के लिए अरबी का आना जरूरी है, तो मुसलमान बनने के लिए भी अरबी का आना जरूरी है, राइट? नहीं नहीं, इस्लाम एग्जैक्टली। को जानने के लिए नहीं, आप किसी को चैलेंज करने के लिए, अगर आप चैलेंज करते हैं तो इसलिए, जानने के लिए या समझने के लिए नहीं। अच्छा तो तो चले सर हम आप यार, चाहे, बिना टाइम समझे, बहुत हो आप गया बिना है। समझे आप उनको इस्लाम मुस्लिम बना सकते हैं, अगर कोई ना समझे इस्लाम को, क्योंकि जब आप समझिएगा तभी ना आप चैलेंज कर पाइएगा। मैंने आपको पहले बोला ना कि कुरान पढ़ के भी गुमराह हो सकता है, अगर अपने लॉजिक से कुरान को समझे तो। तो चलिए लॉजिक ठीक है गलत है या मशीर कुरान? साहब, वकास साहब एंड लॉजिक गलत एवरीवन। होगा ना, क्योंकि मैं लॉजिक गलत लगा रहा हूँ। कुरान गलत नहीं होगा। चलें समीर भाई क्लोज करें। जी समीर भाई क्लोज जाने दे। करने लगा हूँ मैं, तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी लोग आए, इतना टाइम दिया, इतना सपोर्ट किया। एंड गुड नाइट एवरीबॉडी, हैव अ शब स्वीट ड्रीम, खैर। गुड डे अहेड। जी शब्बा खैर। थैंक यू सो मच। किसी को और किसी को कुछ कहना हो, बाय बाय गुड नाइट वगैरह, तो जल्दी से कह दें। गुड नाइट गुड समीर नाइट, जय भाई, हिंद। तंजीला जी। गुड नाइट जी, गुड जी नाइट गुड एवरीवन, नाइट। थैंक यू सो मच रसना, गुड नाइट थैंक यू सो मच एवरीवन। अलजेब्रा भाई एंड स्वीटी एंड all admins and all viewers, thank you so much, thank you Tanjila ma'am, thank you Ali, bye bye everybody, take care, good night, have a sweet dream, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में, तब तक के लिए टेक केयर।